by having the love of Quran. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. So in the next 3 to 4 minutes, I shall quickly go through an overview of Pakistan-Saudi bilateral relations with a quick glance at the situation arising out of the and its effects on Pakistanis living in the kingdom. So for your information, the kingdom is basically divided into two halves when it comes to our diplomatic relations. Voice is not very clear. Riyadh region comprises of central, eastern, and the northern parts of the kingdom, and it is an oil-rich area that we have various jurisdictions. While the western region, which is the Jeddah region, comprises of Makkah and Medina and a few other regions, which are basically more religious regions. The diaspora is approximately 2.3 to 2.4 million that lives in the kingdom. And much of it is concentrated or equally divided in Jeddah and Riyadh. Approximately, sir, 1.8 to 1.9 million Pakistanis travel to Kingdom every year. A bifurcation here would be to the tune of 150,000 almost every month, while 200,000 Hajis come to the Kingdom performing the ultimate rituals, religious rituals. When it comes to our community, sir, we have two broad categories: highly qualified and those that are highly skilled. Unfortunately, we just have 2% highly qualified professionals there, while the 98% majority rests in the four categories and the skilled personnel that we have. And once again, almost 55% of our population here rests with the semi-skilled and unskilled characters here. So this is the broad complexion of our community that lives here in the kingdom. Now, when we talk about the semi-skilled and the unskilled, these are mostly uneducated. They're not aware of the laws, language, or culture, and then therefore they tend to remain financially unstable. Now, why is Saudi Arabia so important for us? To begin with, sir, it absorbs the largest number of our manpower in the country, or from our country. So last year, 2019, we had approximately 330,000 workers which came to the kingdom. It's the largest source of foreign remittance for Pakistan, amounting to roughly $4 to $5 billion every year, sir. Oil imports, of course, are extremely important. They're a source of income for us, for our energy, industrial, and transport sectors. Oil is, of course, provided on credit basis, and payment is made on roll-over basis. The political relations are, of course, very healthy. Saudi and Pakistan relations have been tested and are all-weather
friends that we have offered each other. OIC seat also has its base in the Kingdom, sir, in Jeddah. So these are a few of the points that make Saudi very important for us. A quick look at the COVID-19 situation here. I think the Saudis have done very well, sir. They were amongst the first in the region to wake up to this crisis and immediately took actions to curb the growth. Though it is on the upward stride even as we speak right now, but there are very strict measures that are in place, and I think there would be a downward leveling off and then a downward trend pretty soon. That's our assessment. But the situation as it stands now, total affected in the kingdom would be approximately 30,000. Those who have died out of this pandemic. कितने 13 30 30 So where do the Pakistanis stand here? Total affected would be around 150, sir, and those who have unfortunately perished is around 40. What are the sectors that have been affected by COVID-19 and its effects on the Pakistanis? Construction sector has had its hit, sir. I think the liquidity crunch here has unfortunately given us the adverse effects when it comes to COVID-19 and our people in the kingdom. Most of our, of course, workers are engaged in the construction sectors. And the other effects that are likely to set in are reduced remittances and perhaps increased unemployment back home as they would be turning back home for one reason or the other, sir, because of non-employment factors. Now, what has been the role of Saudi government in the COVID-19 issue? I think they've been very efficient and very effective in containing this pandemic, sir. Lockdowns have been very strict. They've had ban across the regions. Traveling bans have been there. And in fact, traveling within cities has been a problem. They've controlled it very well, sir. I may also perhaps mention here that Saudi is the only country that has had 24-hour curfew, sir. And they've managed it very well. Though it's eased out right now for one reason, being it's Ramadan, but we expect it to go back into 24-hour curfew as soon as Ramadan nears its end. And one of the plus points here is that the Saudi government was quick to announce free medical treatment for all persons in the kingdom, irrespective of their legal status here. What are the immediate concerns that we have gathered as a mission, sir? And I'm sure my Consul General in Jeddah would agree with me, sir. I think one factor that has affected the diaspora here, the Pakistani diaspora here, is the fear that has arisen out of unemployment season. It's given them a feeling of redundancy, being useless. So that factor needs to be addressed perhaps sooner before it takes, I would say, more serious terms. The other factor that we feel has affected our community is the sense of cluster living, sir. There are numerous, in fact, great number of workers that live under shelters, sir, and they take their turns. A segment of workers comes in while the others go to work, and then there's a rollover sort of arrangement. But now that there is absolutely no employment factors here, all of them are sitting under one shed and looking at each other, perhaps out of fear that COVID-19 just would strike them. And of course, by looking at each other and nothing to do, it tends to create some sort of an adverse feeling. And of course, last but not the least, BIA is another very dissuading factor here for them. That earlier with BIA operating, they had their sense of attachment back home. They knew they could travel back any moment, but with this BIA not operational anymore, but rather intermittently, I think the Pakistanis feel that they are disconnected from their homeland. So that issue perhaps may also be seen, sir. We have had some movement on that aspect also, sir. What has been our role in the mission, sir, and the consulate? Very briefly, sir, we've been open 24/7 for the community, sir. And a helpline works along every minute of the day, I would say, sir. We've been able to provide ration to more than 12,000 workers across section here under our jurisdiction, and I'm sure the numbers are equally compelling for Jeddah.
We have been engaging with the employers, and visits have been taking place in the workers' camps. And of course, last but not the least, we are also carrying out a continuous exercise of registering more than 30,000 of our nationals who are awaiting their return to Pakistan. So this number is also growing gradually, because it's a continuing exercise where people inform us or fill up our Google forms and send it back to us. So we are able to increase our data bank of the number of Pakistanis who are wanting to go back to the country. I would now come to the last part of my very brief presentation, sir, which means suggestions that we have, sir. I think there is a need, and I'm sure it's already been there. We need to, first of all, thank the Saudi government for its very helpful arrangements that have been there over the past couple of months, ever since the COVID-19 has come about. I think one factor that particularly should be highlighted is the free medical treatment that has been provided to us. And given the fact that we are in excess of 2.3 million here, there has not been an ultimatum by the Saudi government for any of the Pakistani workers to pack up their bags and go back. So it's been a very, very brotherly attitude, very tolerating attitude. And we owe them gratitude, sir. Then we can perhaps consider on our side a possibility of taking up the issue of delaying the layoff of our Pakistani workers. I think options here could be reduced salaries and unpaid vacations. We as Mission are already working on them, sir, and we will keep the ministry abreast to our efforts here in Riyadh and of course in Jeddah, sir. And last but not the least, and we are very happy to acknowledge also, sir, that we are now getting our share of flights, not just from Riyadh and Jeddah, but also Dammam. We know this upcoming schedule. My only request, sir, would be that if these flights could be given to us on more regular basis, it would greatly help us in appeasing the Pakistani public here and putting them into some sort of schedule for their return back home to Pakistan, sir. So with these words, I would like to thank you for your very kind and patient hearing, sir, and request you, sir, for your opening remarks. Thank you, sir. To switch this on? नहीं. जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. एम्बेसडर साहब, आपका शुक्रिया, और मैं शुक्रगुजार हूँ जितने 55 के करीब पार्टिसिपेंट्स शामिल हो रहे हैं. आपने वक्त निकाला, मैं आप सबका बेहद मशकूर हूँ. मैं आपका शुक्रगुजार हूँ एम्बेसडर साहब कि आपने एक ओवरव्यू दिया है सऊदी अरेबिया की सूरत हाल का, जो हमारी डायस्पोरा के जो चैलेंजेस हैं उनका भी, और जो कोविड-19 की मुश्किलात हैं उनका भी आपने जिक्र किया, और आपने कुछ सजेशंस भी दी हैं बहुत मुफीद हैं. मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा कि जो कोविड-19 की सूरत हाल है वो सिर्फ सऊदी अरेबिया तक महदूद नहीं है, पूरी दुनिया इसकी लपेट में है. 209 से ज़्यादा मुमलिकतें और टेरिटरीज इससे मुतासिर हुई हैं. आपके इल्म में है कि अब तो कोई 2,68,000 के करीब अमवात हो चुकी हैं, और तकरीबन 38 लाख के करीब लोग इस मर्ज से दो चार हैं जो इन्फेक्ट हो चुके हैं. तो ये एक ग्लोबल अनप्रेसिडेंटेड चैलेंज है जिसका शिकार पाकिस्तान भी हुआ है. पाकिस्तान की सूरत हाल आज की ये है कि हमारे यहाँ तकरीबन स्लाइटली ओवर 22,000 केसेस हैं जो लोग इन्फेक्ट हुए हैं, जो टेस्ट हुए हैं पॉजिटिव, और कोई 500 से कुछ ज़्यादा अमवात हो चुकी हैं. फॉर्चुनेटली हमारा जो डेथ रेट है जिसका हमें खदशा था वो उतना नहीं है. दिस इज़ द गुड साइड. और जो हम समझ रहे थे कि प्रेशर पड़ेगा हमारे हेल्थ केयर सिस्टम पर, वेंटिलेटर्स पर जिसकी कमी थी और हम जमा करने की कोशिश कर रहे थे, वो प्रेशर उतना नहीं पड़ा अल्हम्दुलिल्लाह जितना कि हम तवक्को कर रहे थे.
ऑब्वियसली नंबर्स जो इन्फेक्टेड लोग हैं वो नंबर्स बढ़ रही हैं. जैसे जैसे हमारी टेस्टिंग सलाहियत में इजाफा हो रहा है वैसे वैसे उन नंबर्स में इजाफा भी होता चला जा रहा है. लेकिन असल बात ये है कि हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत कितने लोगों को पड़ रही है उसमें भी बतदरीज इजाफा हुआ है, लेकिन अभी इतना अलार्मिंग नहीं है. लेकिन अभी हमने पीक भी नहीं किया. अंदाज़ा है कि पाकिस्तान पीक करेगा एंड ऑफ मई अर्ली जून. तो उसको सामने रखते हुए हम अपनी मनसूबाबंदी और हिकमत अमली मुरतब कर रही हैं. आप जैसे जानते हैं कि हमारा एक ट्विन चैलेंज है. सऊदी अरेबिया जैसी जो मुमलिकतें हैं इन पे अल्लाह का करम है, इनके पास वसाइल की कमी नहीं है और हम बेहद उनके शुक्रगुजार भी हमें होना चाहिए कि उन्होंने जो आप लोगों को फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट की जो सहूलत दी है ये एक बहुत बड़ी एक सहूलत है. और आज के ज़माने में जहाँ हेल्थ एक बहुत बड़ा चैलेंज है ये एक काबिल ज़िक्र सहूलत है. इसी तरह ये जो उनका ये फैसला है कि किसी को यहाँ से ज़बरदस्ती रुखसत नहीं किया जाएगा और कोई अल्टरनेटिव नहीं दिया गया, ये भी बहुत बड़ी बहुत खुश आइंद बात है कि वो अपनी मुश्किलात के बावजूद बिला वजह लोगों पर बोझ नहीं डाल रहे. तो इसके लिए मैं सऊदी हुकूमत का शुक्रगुजार भी हूँ और मैं सऊदी वज़ीर ख़ारजा को ख़त के ज़रिए मैं उनका शुक्रिया भी अदा कर दूंगा. ये मुझे फीडबैक मिला है एंड वी आर ग्रेटफुल फॉर दिस सपोर्ट दैट दे हैव गिवन अस. पाकिस्तान में आपके इल्म में होना चाहिए इससे डील करने के लिए हमने कोशिश की है कि हम एक स्ट्रक्चर मुरतब करें और हमने फेडरल लेवल पर एक स्ट्रक्चर बनाया है जिसको हम कहते हैं नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी NCC. वज़ीर आज़म उसको चेयर करते हैं, मैं उसका मेंबर हूँ, अभी वहीं से आ रहा हूँ और आज भी हमारी एक नशिस्त थी और बड़ी अहम नशिस्त थी जिसमें हमने आज बहुत से अहम फैसले किए हैं. और यहाँ जो फैसले होते हैं NCC में इन पर अमल दरामद के लिए इसकी इम्प्लीमेंटेशन को ओवरसी करने के लिए हमने एक फोरम बनाया है, एक स्ट्रक्चर बनाया है, एक मैकेनिज्म बनाया है जिसको हम कहते हैं NCOC, नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर, जिसमें हमारी अस्करी क़यादत भी मौजूद है, NDMA जो लीड डिपार्टमेंट है वो भी मौजूद है और हमारे जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो भी उस पर मौजूद होती है. मुख्तलिफ वज़रा उसमें बाकायदगी से जाते हैं, रोज़ाना मीटिंग होती है, 9 से 11 रोज़ाना मीटिंग होती है और वो सूरत हाल को असेस करते हैं, सूबों के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं, सूबों की हमें इनपुट मिलती है उनके जो चीफ सेक्रेटरीज हैं उनके ज़रिए. और नेशनल लेवल पे NCC लेवल पे हमें चारों सूबों की, गिलगित बल्तिस्तान की और आज़ाद कश्मीर का हमें फीडबैक मिलता है, इनपुट मिलता है. उनके वज़राए आला के और आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म की मार्फत हमें पूरी सूरत हाल हमारे सामने रखी जाती है और हमारी कोशिश ये होती है और होनी भी चाहिए कि हम जो भी फैसले करें वो नेशनल होलिस्टिक पिक्चर को सामने रखते हुए हम फैसले करें ताकि हम एक आपस में मशावरत के ज़रिए कंसेंसस बिल्ड करें और उस कंसेंसस को लेकर हम आगे चलें. इसमें आप देखते हैं कि आप क्योंकि खबरें आपके पास पहुंचती हैं, टेलीविज़न आप पल पल की खबर देखते हैं, टेलीविज़न पर एक तासुर ये मिल रहा है कि यहाँ कोई झगड़ा और फसाद है. नहीं, ऐसी बात नहीं है. पॉइंट ऑफ व्यू है, हर सूबे को एक जमहूरियत है हमारे यहाँ और उसमें मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यूज़ आते हैं, उन पॉइंट ऑफ व्यूज़ पे डिबेट की जाती है और डिबेट करने के बाद हम सूबों की आरा को सामने रखते हुए फैसले करते हैं और होना भी ऐसा चाहिए. और इंशाअल्लाह हम अनकरीब 11 तारीख को हमने कौमी असेंबली का इजलास भी मुनक़िद किया है, उसका ऐलान कर दिया है. उसके लिए हमने SOPs
डेवलप की हैं, और उन SOPs के तहत हम नेशनल असम्बली का इजलास भी हमने कॉल किया है, ताकि जो मुंतखब नुमाइंदगान हैं उनकी आरा से हम मुस्तफ़ीद भी हो सकें, और उनकी राय को सामने रखते हुए हम एक नेशनल कंसेंसस बिल्ड करने की कोशिश करें, ताकि हमारी एक ऐसी हिकमत अमली बन जाए जिसमें हमारे ट्विन ऑब्जेक्टिव्स जो हैं, क्या कोरोना से लोगों को महफूज रखना, इस वबा से लोगों की इंसानी जान का तहफ़्फ़ुज़, और दूसरा जो हमारे इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं उन चैलेंजेस से हमने कैसे डील करना है। तो ये हम इस हिकमत अमली को सामने रखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। लॉकडाउन हमारे यहाँ भी हुआ, उस शिद्दत से नहीं हुआ जिस शिद्दत के से आपके यहाँ हुआ। आपके यहाँ तो बिल्कुल कर्फ्यू था, हमारे यहाँ कर्फ्यू नहीं था। लोगों को हम हिदायत कर रही हैं कि वो SOPs को फॉलो करें। बहुत सी जगह पे हो भी रहा है, लेकिन कुछ इलाकों में नहीं भी हो रहा। उसके लिए हमने फैसला किया है कि हम ज़बरदस्ती तो कर नहीं सकते, लेकिन अवेयरनेस की कैंपेन को हम ज़्यादा मौसर बनाएं और लोगों को आगाह करें कि ये जो हम आपको हिदायत दे रहे हैं ये उनकी अपनी भलाई के लिए है, उनकी बेहतरी के लिए, उनको अपने उनके ख़ानदानों को, उनके बच्चों को महफूज करने के लिए है। हमने आज कुछ अहम फैसले भी किए हैं, और हमने जो इकोनॉमिक पहलू है उसको सामने रखते हुए, और जो हमें फीडबैक मिल रहा था कि जो इकोनॉमिक ये जो लॉकडाउन है उसका जो इम्पैक्ट अगर हम इसको मुसलसल जारी रखते हैं तो 2 फिगर्स हमारे सामने आ रही थी जो खासी अलार्मिंग थी। एक कि अगर हम इसको, ये तो मालूम नहीं है, किसी को अंदाज़ा नहीं है कि ये वबा कितनी देर चलती है, महीना चलती है, 6 महीने चलती है, इसके असरात साल तक होते हैं। अभी कोई इसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, कोई हतमी राय इस पर कायम नहीं कर सकता। सिचुएशन इवॉल्व कर रही है, तो इसलिए पाकिस्तान जैसी डेवलपिंग कंट्री एक मुसलसल लॉकडाउन की मुतहम्मिल हो नहीं सकती। अगर हम मुसलसल लॉकडाउन रखते हैं तो हमारा एक अंदाज़ा है कि तकरीबन 70 मिलियन के करीब लोग हमारी आबादी के जो गुर्बत की लकीर के ऊपर है, दे विल बी पुश्ड बीनीथ द पॉवर्टी लाइन, और ये एक चैलेंज है जिसको हमें देखना है और उससे नबर्द आजमा होना है। और दूसरा चैलेंज हमारे लिए था कि लॉकडाउन से जो दिहाड़ी पे मजदूर काम करता है, जो रोज रेडी लगाता है, जो टैक्सी चलाता है, रिक्शा चलाता है, वो लॉकडाउन हो गया, वो बेरोजगार हो गया, तो वो अपने बच्चों का पेट कैसे पालेगा। और हमारा ख्याल है कि ये इससे कोई 18 मिलियन के करीब लोग बेरोजगार हो जाएंगे। तो ये बेरोजगारी है, भूख है, कोरोना की वबा है। तो अब इन तीनों चीजों को सामने रखते हुए हमने आगे बढ़ना है। हमारे रेवेन्यूज भी गिरे हैं, रेमिटेंसेस भी कम हुई हैं, एक्सपोर्ट्स में खातिर खा कमी आई है। मिसाल के तौर पे मार्च के महीने में जो हमारी एक्सपोर्ट्स थी, अगर अप्रैल के महीने से हम उसका मवाजना करें तो उसमें 41% कमी आई है, विच इज़ अ मेजर डिक्रीज। और साल के आखिर तक हम समझते हैं कि जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट है उसका खासा इम्पैक्ट होगा। और कुछ लोगों का तो ख्याल ये भी है कि जो हमारा फिस्कल डेफिसिट है वो तकरीबन 9.5 से 10% तक हमारा फिस्कल डेफिसिट हो जाएगा। इसके लिए पाकिस्तान ये भी कोशिश कर रहा है कि न सिर्फ अपने लिए बल्कि दीगर जो हम जैसे डेवलपिंग ममालिक हैं उनके लिए डेट रिलीफ के लिए हम कोई इनिशिएटिव जो वज़ीर आज़म ने लॉन्च किया है उसके लिए हम माहौल साजगार बनाएं, और इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, G20 से और बायलैटरली हम डेट रिलीफ की तरफ हम कोशिश करें, क्योंकि हमारे टोटल रेवेन्यू का 1/3 जो है वो सिर्फ डेट सर्विसिंग पे चला जाता है, और अगर वो हमारा डेट रिस्ट्रक्चर हो जाता है तो वो 1/3 हमें रेवेन्यू का हमारा इजाफा हो जाता है, और वो हम इन्वेस्ट कर सकेंगे अपने हेल्थ केयर सेक्टर पर और लोगों की जानों को महफूज करने पर। तो इस हिकमत अमली के तहत हम आगे बढ़ रहे हैं। बहुत बड़ा चैलेंज है, अनप्रेसिडेंटेड चैलेंज है,
अनचार्टर्ड वाटर्स हैं, कोई वसूख से कह नहीं सकता कि कल को हालात क्या होंगे। कोशिश कर रहे हैं, लोगों का हमें ताउन हासिल है। पाकिस्तानी कौम जो है मुश्किल में हमेशा उसने एक जज्बे का मुजाहरा किया है, वो भी दिखाई दे रहा है। रिजिलियंट कौम है, बहुत कड़े वक्त देखी है, उससे दो चार हुई है, और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि इस महीने की बरकतों से पाकिस्तान भी इससे कामयाबी से हमकिनार होगा, और इंशाल्लाह हम इस चैलेंज का मुकाबला कर पाएंगे और अपने पांव पर खड़े होंगे इंशाल्लाह। अपनी मईशत को, जिसमें बतदरीज बेहतरी आनी शुरू हो गई थी, स्टेबलाइज हुई थी, और स्टेबिलिटी के बाद अब उसमें ग्रोथ और उसकी जो मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं वो स्टेबल होना शुरू हो गए थे, तो उसमें हमें एक वक्ती तौर पर धचका ज़रूर लगा है, लेकिन इंशाल्लाह वी विल ओवरकम दैट। ओवरसीज पाकिस्तानी, आप जो बैठे हैं, आपकी बेपनाह कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं, हम उस कॉन्ट्रीब्यूशन को रिकग्नाइज करते हैं। आपने हमेशा आड़े वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया है, फराख दिली से कंट्रीब्यूट किया है। आज भी जो प्राइम मिनिस्टर का रिलीफ फंड है उसमें मुश्किलात में पूरी दुनिया है। पहले होता था एक खित्ता, एक इलाका, एक मुल्क, एक खित्ता, एक रीजन मुतासर होता था। फ्लड के सूरत हाल आपके सामने है, 2010 की, 2005 की ज़लज़ले की सूरत हाल आपके सामने है। पूरा मुल्क मुतासर नहीं होता था, पूरी दुनिया यकपक मुतासर नहीं हुआ करती थी। आज पूरी दुनिया मुतासर है, पूरा मुल्क मुतासर है, तो इसलिए हमें अंदाज़ा है कि चैलेंज जो है वो बहुत बड़ा है। आप खुद भी उस चैलेंज से गुजर रहे हैं। इसके बावजूद जो आपसे सपोर्ट मिल रही है, हम उसके लिए बेहद शुक्रगुजार है, और इंशाल्लाह कोशिश हमारी होगी स्ट्रैंडेड पाकिस्तानीज का अभी बैरिस्टर साहब जिक्र कर रहे थे कि 30,000 के लगभग ऐसे पाकिस्तानी हैं जो सऊदी अरेबिया में इस वक्त फंसे हुए हैं और रजिस्टर करवा चुके हैं और वापस आना चाहते हैं। हमारी हद्दुल वसा कोशिश है कि हम जल्द अज जल्द उनको वापस लेकर आएं, लेकिन हमारे जायज़ मुश्किलात हैं, और उन मुश्किलात में से ये है कि जिनको भी हमने वापस लाना है उनको हमने टेस्ट करना है। उनको टेस्ट करने के बाद अगर उनमें से पॉजिटिव कोई निकलते हैं, और हर जहाज़ में लोग पॉजिटिव निकलते हैं, तो उनको हमें क्वारंटीन करना पड़ता है। सीट मैपिंग के मुताबिक दाएं बाएं आगे पीछे जो लोग बैठे हैं उनको भी क्वारंटीन करना पड़ता है, SOPs को फॉलो करना पड़ता है, और हमारी जो क्वारंटीन कैपेसिटी है वो लिमिटेड है। तो हमें ये चैलेंजेस हैं, लेकिन उन चैलेंजेस के बावजूद हम कोशिश कर रहे हैं कि थ्रू स्पेशल फ्लाइट्स हम लोगों को वापस लाएं। आपके इल्म में है कि डोमेस्टिक फ्लाइट्स हमारी बंद थी, अब बतदरीज हमने आहिस्ता आहिस्ता उनको ट्रेन्स को और अपना फ्लाइट्स को खोलने का फैसला किया है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट, इंटरप्रोविंशियल ट्रांसपोर्ट पर अभी भी पूरी यकसुई से कोई फैसला नहीं हो सका, इसलिए हमने उसको मौखर कर दिया है। मजीद उस पर बहस व मुबाहिसा होगा और हम कंसेंसस बिल्ड करने की कोशिश करेंगे। मैं बहुत वक्त आपका नहीं लेना चाहता, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपसे फीडबैक लिया जाए कि आपकी सूरत हाल क्या है, और हम आपके पास कोई सजेशंस हैं तो सजेशंस भी मैं लेना चाहूँगा, और आपके हालात से आगाह भी होना चाहूँगा। तो ओवर टू यू, और अब आप जो बात करें, आई विल ट्राई एंड रिस्पॉन्ड एट द एंड इफ आई हैव द टाइम। शुक्रिया। Thank you, sir. With your permission, sir, I'll open this house now for questions and answers. Thank you, sir. मैं सबसे पहले खालिद अकरम राणा साहब को दावत देता हूँ अपना सवाल। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम हिज एक्सेलेंसी एंड मिस्टर तो बहुत शुक्रिया कि आज आपने पिछले काफी मुद्दे और हमारे इश्यूज और मामला पे जो भी है वो सुने और इस दिन इंशाल्लाह ताला भी जाएंगे। मैं क्विकली क्वेश्चन की तरफ आता हूँ। आपने जिस तरह कहा कि बहुत नंबर्स हैं यहाँ से जाने के लिए, इसमें वो लोग भी हैं जो कोविड-19 से मुतासर है, जॉब के हवाले से या स्टक होने के हवाले से, बहुत ज्यादा नंबर है। तो आपने जिस तरह कहा कि हमें वहाँ मुश्किलात पेश आ रही हैं, तो मेरा ख्याल है इस मुश्किलात को मद्देनजर रखते हुए यहाँ भी मुश्किलात हैं। तो
हमें कोई ऐसा मैकेनिज्म बनाना होगा जिससे जल्द पाकिस्तानी अपने जा सके। और इनमें से कुछ ऐसे भी हैं जो वाकई बीमार हैं, हुए हैं, जॉबलेस हो गए हैं। ये बहुत बड़ी तादाद है और ये तादाद आने वाले दिनों में बढ़ेगी, तो हमें इसको बड़ी जल्दी एड्रेस करना होगा और मैक्सिमम फ्लाइट्स के जरिए इनको वापस से जाना होगा। नंबर 1। नंबर 2, बहुत बड़े वर्कर्स की यहाँ पे डेड बॉडीज पड़ी हुई हैं जो नॉर्मली के जरिए मैसेज वेयर करती थी, वो मतलब मअतल होने से जो की तस्दीक है पाकिस्तान नहीं हो सकी, उसके लिए आप जो अहकाम जारी करें। तो क्वारंटाइन के हवाले से जो मेरी गुजारिश भी ये भी होगी कि जो नहीं जा सकते, यहाँ पे बहुत सारे जॉबलेस हो गए हैं, तो फैमिलीज को ईद के हवाले से मिनिमम कोई ना कोई ऐसा कंपनसेट किया गया। बाखुदा यहाँ बहुत परेशानी में लोग हैं, बहुत मजदूर लोग जिनको तनख्वाहें नहीं मिल रही थी, लेकिन कोरोना की वजह से उनकी फैमिलियां रो रही हैं, उनके ऊपर गुजार है, उनके लिए थोड़ा सा ऐसा काम किया जाए उनकी फैमिलीज को पाकिस्तान में मौके पे। और जब फ्लैट शेड्यूल जारी करेंगे तो उसमें शापर को की जगह जो बहुत नंबर पश्तूनों की है उनके लिए खालिद अकरम राना साहब, 2-3 बातें आपको तेजी से हम तभी ला सकेंगे अगर हम क्वारंटीन की सूरत हाल को बेहतर कर पाएंगे। क्वारंटीन की सूरत हाल को बेहतर करने के लिए हम सूबों के साथ गुफ्तगू कर रहे हैं और हमारी कोशिश ये है कि सूबे अगर इस चीज़ पर आमादा हो जाएं कि टेस्टिंग के बाद जब लोग पॉजिटिव निकलते हैं और उनके कोई इतने सीरियस सिम्टम्स नहीं हैं तो वो सेल्फ क्वारंटीन में चले जाएं, अपने घरों में क्वारंटीन में चले जाएं। तो उससे ये है कि रफ्तार बढ़ सकेगी और हम ज़्यादा तेज़ी से लोगों को वापस ला सकेंगे। लेकिन इस पे अभी कंसेंसस की ज़रूरत है क्योंकि सूबे मोहतात हैं, वो समझते हैं कि इससे कहीं ह्यूमन ट्रांसमिशन से उनका बोझ बढ़ न जाए। डेड बॉडीज़ का बिल्कुल हमें एहसास है कि वो लोग आना चाहते हैं, तदफीन के लिए आना चाहते हैं, तो PIA को हिदायत दी गई हैं वो डेड बॉडीज़ को जब भी जहाँ से फ्लाइट चलती है वो डेड बॉडीज़ के लिए गुंजाइश रखते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट वो लाने का उनको कह दिया गया है। जहाँ तक आपने कहा है कि वो लोग जो बेरोजगार हो गए हैं उनकी फैमिलीज की मदद की जाए, तो मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर दूं कि हमने 2 प्रोग्राम्स लॉन्च किए हैं। एक प्रोग्राम है जिसका नाम है एहसास प्रोग्राम और ये हमारी गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। ये सियासत से बालातर है, इसमें कोई सियासी पसंद नापसंद की बात नहीं है। मेरिट पे लोग अपने आप को रजिस्टर कराते हैं, चाहे उनका किसी तबके से किसी जमात से ताल्लुक हो, उसका क्राइटेरिया फिक्स्ड है, जो उस क्राइटेरिया में फॉल करता है उसको पैसे मिल जाते हैं फी कुंबा। और उसमें हमने 144 अरब रुपया इसके लिए मुख्तस किया है और इंशाअल्लाह उम्मीद है कि ईद से पहले ये 144 अरब रुपया उन लोगों में तकसीम हो जाएगा। इसी तरह हमने एक और प्रोग्राम लॉन्च किया है और उस प्रोग्राम को हम कह रहे हैं कि वो बेरोजगार जो कोरोना की वजह से बेरोजगार हुए हैं, बेरोजगारी तो बहुत है लेकिन जो कोरोना की वजह से बेरोजगार हो गए हैं वो भी अपने आप को रजिस्टर कराएं और हम उनको भी थ्रू ए सिस्टम क्राइटेरिया के मुताबिक सिलेक्ट करेंगे और उनकी माली इमदाद करने की कोशिश करेंगे। जी मूव ऑन। थैंक यू सर। मेरी सब भाइयों और बहनों से इल्तिमास है कि वो अपने सवालात मुख्तसर रखें और कोविड और पाकिस्तानी यहाँ पे जो है उनसे रिलेटेड। थैंक यू। मैं अगली दावत मुबश्शिर शेख साहब को दे रहा हूँ, वो आपके सवाल करेंगे। थैंक यू। जी, मेरा नाम डॉक्टर मुबश्शिर शेख है, आई एम बेस्ड इन जद्दा। आई विल बी वेरी ब्रीफ। पहली बात यह है कि जो इतने लोगों ने यहाँ से जाना है सऊदी अरेबिया से पाकिस्तान, मेरे हिसाब से PIA कैनॉट केटर फॉर देम, इट्स नॉट सफिशिएंट। तो क्या आप तमाम और जद्दा पोर्ट्स जो सी पोर्ट्स हैं वहां पर कोई शिपिंग का इंतजाम कर सकते हैं, शिपिंग लाइंस, दे कैन टेक अ लार्ज नंबर। दिस इज जस्ट अ सजेशन फॉर यू टू लुक एट। सेकेंडली, जो पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स सऊदी अरेबिया में भी हैं और दुनिया के मुल्कों में भी हैं, particularly in healthcare and health sciences and also in technology, ये 2 एरियाज हैं जो आपको जरूरत है। क्या आप इन लोगों के कोई ग्रुप्स बना सकते हैं
एडवाइजरी ग्रुप जो आपकी हेल्प कर सकें। सो बहुत मुख्तसरन ये 2 बातें थी। एक बात और अर्ज कर दूं, जो पाकिस्तानी यहाँ से वापस जाएंगे उनको सेटल कैसे करना है आपने, बिकॉज वो लोग यहाँ से साल के बाद यहाँ से जाते हैं, पैसे भी लेके जाएंगे, they are skilled, semi skilled and so on, उनके लिए कोई इंतजाम कीजिए कि वहाँ जाकर सोसाइटी में फ्रूटफुल रोल प्ले कर सकें और स्वार ना जाया ना उनका। So these are my humble suggestions. जी मुबशर साहब, जहाँ तक आपने कहा है कि शिपिंग लाइन को इस्तेमाल किया जाए, इसको कंसिडर किया जा सकता है, लेकिन उसमें सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो फिर आएगा सिंध की हुकूमत, और वो समझती है कि अभी तक जो उनका पोर्ट है वहाँ क्वारंटीन फैसिलिटी उनके पास नहीं है और शिपिंग के लिए दिक्कत होगी। अगर वो आमादगी जाहिर कर देते हैं तो इस पर गौर किया जा सकता है, क्योंकि देखिए हमने तो अदाद शुमार इकट्ठे करने हैं, फैसिलिटेट करना है। बेसिकली जो लॉजिस्टिक्स हैं, ग्राउंड पे लॉजिस्टिक्स हैं, वो फॉरेन ऑफिस ने नहीं, वो ओवरसीज मिनिस्ट्री ने नहीं, वो एविएशन ने नहीं, वो सूबाई हुकूमतों ने करनी है। अब ये उनकी कैपेसिटी पे है वो कितना कर सकती हैं। पर आइडिया अच्छा है, मैं आपका आइडिया NCOC को भेज देता हूँ कि इसको भी कंसिडर कर लें। दूसरा आपने कहा कि डॉक्टर्स हैं, माहिरीन हैं, उनसे हम किस तरह मुस्तफीद हो सकते हैं। तो यस, विद दिस मॉडर्न टेक्नोलॉजी टेलीमेडिसिन अब यहाँ इंट्रोड्यूस करवाई जा रही है, और बहुत से, क्योंकि हमारे हॉस्पिटल्स जो OPDs हैं वो बंद हैं लॉकडाउन की वजह से, तो लोगों को ज़रूरत तो है, तो उसके लिए टेलीमेडिसिन का बंदोबस्त किया गया है। बहुत से शहरों में वो राइज हो चुकी है और लोग उससे मुस्तफीद हो रहे हैं। तो उसी तरीके से आप भी अगर कंट्रीब्यूट करना चाहें तो यकीनन उसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। और तीसरी चीज़ ये है, जो लोग वहाँ से आएंगे उनको खपाया कैसे जाएगा। बाय एंड लार्ज जो लोग बाहर गए हुए हैं पाकिस्तानी, वो उनमें वो एनर्जेटिक हैं, एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स उनमें मौजूद हैं, स्किल्ड हैं, और वो अपने आप को यहाँ एडजस्ट कर लेंगे। इसका है वो मतलब है कि उनको काम करने की आदत है और वो काम करते हैं, बल्कि वहाँ बाहर काम करके अपने कुंबों का पेट पालते हैं यहाँ अपनी रेमिटेंसेस के जरिए। तो वो दे आर एबल बॉडीड पीपल, दे आर यूजफुल पीपल, और वो इंशाल्लाह मैं समझता हूँ अपनी जगह बना भी सकेंगे। बट ये चैलेंज होगा कि अगर बड़ी तादाद में लोग आ जाते हैं विद एन इकोनॉमिक स्लो डाउन, विद ए ग्लोबल रिसेशन, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, पाकिस्तान में अगर लोग आते हैं और हमारी एक्सपोर्ट्स ही नहीं हो रही तो हमारी फैक्ट्रियां बंद हैं। इस वक्त आपके इल्म में है कि बेशतर इंडस्ट्री पाकिस्तान की बंद है। हमने कुछ इंडस्ट्री को खोला है, कंस्ट्रक्शन सेक्टर को खोला है, और उसको खोलने की बुनियादी वजह यही थी कि लोगों को रोजगार मिल सके। आज हमने कंस्ट्रक्शन सेक्टर का फेज 2 का हमने ऐलान किया है, ताकि और जो उनके साथ जो नेसेसरी इंडस्ट्री है कंस्ट्रक्शन के साथ जो पहले बंद थी उसको भी खोला जाए, ताकि आहिस्ता आहिस्ता मईशत का पहिया चलता भी रहे और लोग बेरोजगार भी ना हो और भूख से भी ना मरे। Thank you, sir. I now request Dr. Asad Rumi, please drop this question. Thank you. Assalamualaikum, sir. Honorable Minister साहब, Ambassador साहब और सारे गेस्ट, अस्सलाम वालेकुम। सर, 2 चीजें हैं जो मैं डिस्कस करना चाहूँगा आप लोगों से। एक तो कोविड-19 सऊदी अरेबिया में जिस तरह एम्बेसडर साहब ने कहा कि वेल कंट्रोल्ड है, mortality is 0.6% है, 96% of the ICU beds are empty। तो सऊदी अरेबियन गवर्नमेंट ने बहुत तरीके से इस डिजीज को आपकी आवाज पाकिस्तान डॉक्टर्स ग्रुप को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो मेरे साथ बहुत सारे डॉक्टर्स बैठे हैं और आपकी बात सुन रहे हैं। तो पाकिस्तानी डॉक्टर्स जो रियाद में हैं, वो मरीज जो यहाँ पे हैं जो नॉन एलिजिबल हैं, उसके लिए हमने हेल्पलाइन बनाई हुई है, दवाएं दे रहे हैं, इमरजेंसी ट्रीटमेंट उनको दे रहे हैं। हमारे पास जितने वसाइल हैं उसके थ्रू हम काम कर रहे हैं। आई वुड रिक्वेस्ट योर ऑनरेबल ऑफिस कि अगर आप इसमें हमें किसी वेलफेयर के थ्रू हेल्प कर सकें तो इट विल बी हाईली अप्रिशिएटेड।
दूसरी बात सर ये है कि हमारे जो मरीज हैं जो यहाँ पे मौजूद हैं जो किसी वजह से पाकिस्तान नहीं जा सकते। When you say help, what kind of help are you looking for? सर हमारे पास इस तरह का सिस्टम है कि हमें फंड्स चाहिए होते हैं कि हम सिलसिला जारी रख सकें दवाओं का हिसाब से, ट्रीटमेंट के हिसाब से और इमरजेंसी ट्रीटमेंट के हिसाब से। अगर हमें वेलफेयर फंड कोई एम्बेसी में हो हमें मिल जाए तो उससे बड़ी सपोर्ट हो जाएगी हमारे पाकिस्तानियों की यहाँ पे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर एक्सेप्टिंग दिस आइडिया। दूसरा मैं ये कहना चाह रहा था कि जो हमारे मरीज सिख हैं, एम्बेसी ऑफ पाकिस्तान एम्बेसी साहब बड़ी खुशखबरी के साथ उनको पाकिस्तान भेज रहे हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा, हम्बल रिक्वेस्ट के सर फ्लाइट्स बढ़ाई जाए ताकि वो जा सकें। उसमें बहुत सारे लोग सिख हैं जिनका जाना जरूरी है और उनका इलाज हमारे मुल्क सऊदी अरेबिया में मुमकिन नहीं है। सिर्फ कोविड-19 का इलाज किया जाता है, नॉन कोविड-19 लोगों को सहूलतें फिलहाल अवेलेबल नहीं है। तीसरी बात ये थी जो बहुत जरूरी है, 120 के करीब पाकिस्तानी डॉक्टर्स किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया के पाकिस्तान में जॉब करते, जो सऊदी अरेबिया में जॉब करते हैं, वो इस वक्त पाकिस्तान में छुट्टियों पे गए हुए थे और नहीं आ सके। They are the main revenue generator, उनकी सैलरीज होल्ड पे हैं। सफीर साहब ने बड़ी अंतर मेहनत की है और एम्बेसी का स्टाफ इसको लाने की भरपूर कोशिश कर रहा है। मैं बड़ा सराहूंगा इस बात को और मैं आपके ऑनरेबल ऑफिस से रिक्वेस्ट करूंगा सर, इट वुड बी हाईली अप्रिशिएटेड टू ब्रिंग these the main revenue generator of the Pakistani physicians to bring back to Saudi Arabia and they'll be the first liner and they will serve the country. सर आखिरी बात ये कहूंगा, एहसास प्रोग्राम के अंदर पाकिस्तानी डॉक्टर्स बड़ा भरपूर तरीके से हिस्सा लेना चाहते हैं। अनफॉर्चुनेटली जो हमें पता चला है, कोई भी ब्रांच नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की हमसे यहाँ पे नहीं है जो हमसे पैसे यहाँ पे ले लें। हमें डायरेक्ट रेमिटेंसेस करनी पड़ रही है, इसमें मुश्किलात आती है। It would be appreciated if you can open some branches here with the account those who can take the money from the Pakistani community in Saudi Arabia. Thank you very much for your time, sir. Thank you, Dr. Asad. डॉक्टर साहब, पहले तो शुक्रिया, आपने हेल्पलाइन वहाँ बनाई है और आप लोगों की खिदमत कर रही हैं, तो थैंक यू फॉर डूइंग दैट। डॉक्टर्स ऑल ओवर द कंट्री, इन पाकिस्तान, आउटसाइड पाकिस्तान, बहुत ज़बरदस्त काम कर रही हैं और पाकिस्तान की इज्जत में इजाफा किया है। हमारे जो डॉक्टर्स हैं यूके में, हमारे जो डॉक्टर्स हैं अमेरिका में, जहाँ बहुत ही चैलेंजिंग हालात हैं। आपके इल्म में है कि 74,000 के करीब अमवात अमेरिका में हो चुकी हैं, 30,000 के करीब अमवात यूनाइटेड किंगडम में हो चुकी हैं। वहाँ हमारे बहुत से डॉक्टर्स हैं जो खुद भी मुतासिर हुए हैं और उन्होंने अपनी अल्टीमेट प्राइस पे की है, अपनी जान का नजराना दिया है पाकिस्तानी डॉक्टर्स ने। तो उससे उन्होंने बहुत इज्जत बनाई है पाकिस्तान की और जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं हॉस्पिटल्स में, बड़ी गुडविल जनरेट की है उन्होंने पाकिस्तान। फ्रंट लाइन इस वक्त आप सोल्जर्स हैं अगेंस्ट दिस फाइट अगेंस्ट कोविड-19 और आपकी काविशों को हम सराहते भी हैं और आपका शुक्रिया भी अदा करते हैं। आपने जिक्र किया कि आपकी हेल्प कैसे की जा सकती है। मैं एम्बेसडर साहब को कहूँगा कि इसको देख लें कि कम्युनिटी वेलफेयर फंड में से अगर आपकी हेल्प की जा सकती है तो ज़रूर की जाए। जो वहाँ कोई ऐसे लोग हैं जो फिलैंथ्रोपी में बिलीव करते हैं, खुशहाल किस्म के पाकिस्तानी हैं, वहाँ भी रिसोर्स मोबिलाइजेशन आप कर सकते हैं और वो रिसोर्सेज अगर आप जनरेट करते हैं तो इन डॉक्टर्स को उस फंड में वो मिल जाएं ताकि ये जो रोज़मर्रा की जो पाकिस्तानियों की खिदमत कर रही हैं वो करते चले जाएं। आपने जिक्र किया 120 पाकिस्तानियों का, डॉक्टर्स का जो पाकिस्तान में फंस गए, जिनके वीज़ा थे और फ्लाइट्स के बंद होने की वजह से वो ना जा सके, उनके लिए हम कोशिश कर रहे हैं और कोशिश हमारी जारी रहेगी ताकि वो अपना काम पर लौट सके और अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें माशरे को भी और अपनी फैमिलीज को भी। थैंक यू। मैं अब दाद देता हूँ मसूद पूरी साहब से सवाल करें। I don't hear him. मसूद पूरी साहब, हाँ पूरी साहब दिखाई तो दे रहे हैं, बोलने की कोशिश कर रहे हैं, आपकी आवाज नहीं आ रही।
पूरी साहब आपकी आवाज नहीं आ रही, अब आ गई। वालेकुम सलाम। जी जी जी, मैं शुक्रगुजार हूँ कॉन्सुलेट और एम्बेसी का कि जिन्होंने एक कॉन्फ्रेंस का इंतजाम किया है, क्योंकि ये वक्त की जरूरत थी और मुझे उम्मीद है कि आप इस दावत से इंशाल्लाह अच्छे नतीजे मिलेंगे। मैं चूँकि पिछली कमेटी से मेरा ताल्लुक है, तो इसलिए मैं थोड़ा अपने सवाल को कश्मीर से रिलेट करूँगा। बल्कि सवाल नहीं है, ये गुजारिश है कि कोरोना की जमात में भारत कश्मीर में जो कर रहा है उसके लिए हुकूमत बहुत कुछ कर रही है, लेकिन मैं समझ वो मुनासिब तो है, लेकिन शायद काफी नहीं है। हमें इससे कुछ ज्यादा करने की जरूरत है। OIC के साथ साथ UNO और इंसानी हकूक की आलमी तंजीमों में भी हमें मौसर तौर पर आवाज उठाने की जरूरत है। इस लॉकडाउन ने दुनिया को ये समझ दे दी है कि लॉकडाउन कितना अजियतनाक होता है। हम इस सिचुएशन को इस्तेमाल करते हुए अगर हम दुनिया के तमाम फोरम से इसको सही मौसर अंदाज, मजीद मौसर अंदाज में उठाएं तो इंशाअल्लाह में फायदा होगा। दूसरी मेरी गुजारिश ये है कि सऊदी अरेबिया में लोकल स्कूलों ने वो काफी सारी चीजें कम कर दी हैं, और मैं ये समझता हूँ कि अगर एम्बेसी के तमाम जो स्कूल हैं उनमें भी कोई फीसों की तरफ देखा जाए तो ये कम्युनिटी के लिए एक बहुत बड़ा रिलीफ होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। जी शुक्रिया पूरी साहब। जहाँ तक कश्मीर का आपने जिक्र किया है, बिल्कुल कश्मीर का मसला बहुत संजीदा है, और ख़ास तौर पे 5 अगस्त के बाद भारत ने जो इलीगल इक़दाम उठाए हैं, एक मुतनाज़ा इलाके को अपने साथ एनेक्स करने की कोशिश की है, और जो जुल्म और बर्बरियत वहाँ का जो एक निज़ाम चल रहा है वो आपके सामने है। कोविड का भी उन्होंने कोई लिहाज नहीं किया। ख्याल ये था कि कोविड को सामने रखते हुए वो शायद एक फेस सेविंग उनको मिल जाएगी और कुछ आसानियां पैदा करेंगे मकबूजा कश्मीर में, लेकिन ऐसा दिखाई नहीं दिया। 9 माह से वो लोग अंडर सीज हैं और बड़ी मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं। अस्पतालों तक, डॉक्टर्स तक रसाई मुयस्सर उन्हें नहीं है। आप देख रहे हैं कि मुसलसल लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज फायर की खिलाफ वर्जियाँ भी हो रही हैं, और वो हमारे निहत्ते शहरियों को भी निशाना बना रहे हैं। हम उसका एहतजाज भी कर रहे हैं, और वो तलाश में है, किसी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तलाश में है। वो कोई ना कोई बहाना ढूंढना चाहते हैं कि दुनिया की तवज्जो उस तरफ वो कर दें और अटेंशन डाइवर्ट करें, क्योंकि वहाँ हालात बहुत बिगड़ चुके हैं। लोगों को वो एलियनेट कर चुके हैं, लोग उनसे नाला हैं। हर तबका जो माजी में उनसे ताउन करता था, आज वो भी उनसे नाला दिखाई देता है। कोई लीडरशिप लेवल पे नौजवानों में एक नई लहर है आज़ादी की और खुद मुख्तारी की, वो देख रहे हैं, तो उसको कुचलने की उनकी हत्तल-वसा कोशिश है। पाकिस्तान ने हर फोरम पर, चाहे वो OIC का फोरम है, चाहे अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल है, चाहे UN सेक्रेटरी जनरल है, अभी सेक्रेटरी जनरल तशरीफ लाए थे पाकिस्तान में, तो पूरी शद्दोमत से उनके साथ कश्मीर का जो उनका हक़ खुद इरादियत है उस पर बात हुई थी। चाहे इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं, पाकिस्तान उनसे राब्ते में है, रुजू कर रहा है। चाहे जिनीवा में ह्यूमन राइट्स काउंसिल है, उनके साथ हमारा मुसलसल राब्ता है, और कश्मीरियों के साथ जो नाइंसाफ़ी और नारवा सलूक बर्पा किया जा रहा है उसको हम उसको जाने नहीं देते, और आए दिन हम उसका जवाब भी देते हैं। जहाँ तक स्कूलों की फ़ीस का ताल्लुक है, पाकिस्तान में हमने लोगों की सहूलत के लिए स्कूलों की फ़ी में रिडक्शन की है, और 20% रिडक्शन हमने की है प्राइवेट स्कूल्स को। हमने कहा है कि वो लोगों को रियायत दें। अब मैं एम्बेसडर साहब ने आपकी बात सुन ली है, तो मैं कहूँगा कि इस पे वो देख लें कि हाउ कैन ही हेल्प। स्कूल्स उनके नीचे हैं, देख लें कि अगर कोई सहूलत हो सकती है तो उस पर ज़रूर गौर कीजिए। Sir, I've been looking to it, sir, but if I have your permission, can I just make a small... Let the people speak. You can respond later. You can call me directly. You can WhatsApp. Okay, sir. Thank you, sir. अब मैं दावत देता हूँ मिसेस तस्नीम अमजद साहब अपना सवाल करें। Thank you. जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।
سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کروں گی حکومت پاکستان کا، آپ کا، سفیر محترم کا، اور اپنی امبیسی میں سے خصوصی طور پر اپنے ڈائریکٹر بن کا۔ یقین کریں کہ یہ لوگوں نے ہمیں یہ اپرچونیٹیز پرووائڈ کر کے ہمارے لیے بڑی مشکلات، ہماری مشکلات ہیں ان کو آسان کیا۔ تو مختصر میں جلدی سے میرے ذہن میں جو چیزیں آ رہی ہیں میں آپ سے عرض کرنا چاہوں گی۔ ایک تو یہ ہے کہ جیسے یہاں لوگ کرائسس میں ہیں، تو ان کرائسس میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو اقامے کی پرابلم ہے اور ان کے حروف لگے ہوئے ہیں۔ اس سلسلے میں سر آپ کی حکومت پاکستان کی خصوصی کوئی شاہی فرمان جاری کروانا پڑے گا، کوئی خاص ایک قسم کا عام معافی کا انتظام کروانا پڑے گا۔ اگر وہ حکومتی لیول پر کام ہوتا ہے ان کا، تو اس میں ان کو فائن دینا پڑے گا، اور وہ فائن بیچارے کہاں سے دیں گے؟ ان سے زیادہ تر لیبر ہو گئی ہے۔ سر اس سلسلے میں حروف اور اقامے کے مسئلے والوں کے لیے کوئی ایسا کوئی مسئلہ ہے ان کا، وہ حل کرنے کی سر کوشش کریں۔ دوسرا سر یہ ہے کہ آئل پروڈیوسنگ جو کنٹریز ہیں وہ سارے اب کرائسس میں آ گئے، اور ان کرائسس کا اثر جو ہے وہ اوورسیز پر ڈائریکٹلی پڑ چکا ہے اور پڑے گا بھی آئے گا۔ اور بہت سی باتیں ہمارے سفیر محترم نے کر دی، آپ بھی اس کی جوابات دے رہی ہیں۔ اس سلسلے میں چاہوں گی کہ حکومت پاکستان کچھ حکمت عملی، کچھ منصوبہ بندی کا تھوڑا سا ذکر کر کے ہمیں حوصلہ دے کہ یہ اتنے اوورسیز پاکستانی جو ان امپلائمنٹ کے چکر میں یا سیلریز بہت کم ہو رہی ہیں، یہاں بہت پرسنٹیج لوگ ہیں، اس سے یہ لوگ اوورسیز ہم واپس جائیں گے تو ہمیں وہاں پہ کیا تحفظ ملے گا۔ یہ حکمت عملی بہت زیادہ ہائی لیول پہ حکومت پاکستان کو تیار ہے۔ اور لاسٹ میں سر میں یہ کہوں گی کہ تقریباً ابھی میں بات ہو بھی چکی کہ پی آئی اے کی فلائٹ زیادہ کرنے کی ضرورت ہے سر، اس لیے کہ لوگ یہاں پہ بہت زیادہ ہے، بہت 12,000 لیک ہیں۔ تو اس پوائنٹ آف ویو سے ان لوگوں کو کیسے یہاں سے واپس بھیجا جائے، آپ کے لیے حکومت پاکستان کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے، اور فلائٹ زیادہ کرنے کی ضرورت ہے۔ شکریہ سر۔ محترمہ، جہاں تک اقامے کا تعلق ہے، اس کو دیکھنا پڑے گا کہ ان کے اقامے کی جو میعاد ختم ہو گئی ہے، ان پہ جرمانے عائد ہیں، اس میں کیا کیا جا سکتا ہے۔ وی کین ٹیک اٹ اپ ود دی سعودی اتھارٹیز، اور ان سے بات کر کے ہی آپ کی خدمت میں کچھ بتا سکیں گے، سفیر صاحب کو بتا دیں گے، لیکن ہم از خود تو کچھ نہیں کر سکتے، ان سے درخواست کر سکتے ہیں، اینڈ وی ول ٹیک اٹ اپ ایٹ دی ڈپلومیٹک لیول۔ سیلری ریڈکشنز ہوئی ہیں، بالکل ہوئی ہیں، ہر جگہ ہو رہی ہیں، لیکن میں پھر بھی کہوں گا کہ اگر سیلری ریڈیوس بھی ہو جائے اور روزگار لگا رہے تو وہ بہتر ہے، بیکاز ونس تھنگز ریٹرن ٹو نارمل تو پھر وہ بحال ہو جائیں گے، اور اگر لوگ وقتی پریشانی کی وجہ سے واپس آ جاتے ہیں تو یہاں بھی کوئی آسانی نہیں ہے۔ اگر سعودی عربیہ ایسا ملک جو ہے وہ مالی دقتیں فیس کر رہا ہے، اور ان کی آئل کی جو پرائسز ہیں وہ گری ہیں، اور آپ نے دیکھا کہ ان میں کتنی کمی آئی ہے، تو آبویسلی ان پہ امپیکٹ آئے گا، کنسٹرکشن انڈسٹری پہ امپیکٹ آئے گا، لے آفس ہوں گے، تو یہاں بھی تو امپیکٹ آ رہا ہے۔ یہاں بھی تو یہ پاکستان کوئی ایسا جزیرہ تو نہیں ہے جو کرونا سے محفوظ ہے، تو پاکستان میں واپس آئیں گے تو یہاں بھی دقتیں ہوں گی، یقیناً ہوں گی۔ یہ ایک گلوبل کرائسس ہے، اور ایکسپرٹس کہہ رہے ہیں کہ یہ گلوبل ریسیشن ہے، اس نوعیت کا ریسیشن دوسری جنگ عظیم کے بعد کسی نے دیکھا نہیں ہے۔ یہ جو گریٹ ڈپریشن تھا 1930 کا، 32 کا، 33 کا، اس سے بھی شاید بڑا ہو۔ 2009 کا جو فائنینشیل کرائسس تھا اس سے یہ کہیں زیادہ ہے۔ دنیا نے ایسا تجربہ پہلے کیا ہی نہیں ہے۔ پورا یورپ ریسیشن میں ہے، پورا امریکہ ریسیشن میں ہے، جہاں آپ کی منڈیاں ہیں وہ ریسیشن میں ہے، جہاں آپ کی آبادی وہاں روزگار کے لیے گئی ہوئی ہے۔ سارا گلف آپ دیکھیں، سعودی عربیہ میں تو 30,000 لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو رجسٹر کیا ہے واپس آنے کے لیے۔ یو اے میں 70,000 لوگ ہیں جو رجسٹر ہو چکے ہیں اور واپس آنا چاہتے ہیں۔ قطر میں کوئی 5,000 سے زیادہ لوگ ہیں جو واپس آنا چاہ رہے ہیں۔ دقتیں ہیں، اور یہ پورے گلف میں یہ پرابلمز ہیں۔ ابھی میری کویت کے وزیر خارجہ سے بات ہو رہی تھی کہ ہم کس طرح پوسٹ کووڈ ہم کس طرح آپس میں انگیج کر سکتے ہیں، اور فیوچر کے لیے ہم کس طرح
दोनों ममालिक के लिए मौके पैदा कर सकते हैं। ये इंगेजमेंट मैंने शुरू की हुई है, मुख्तलिफ फॉरेन मिनिस्टर से बात कर रहा हूँ कि कोरोना एंड पोस्ट कोरोना, आफ्टर कोरोना हमने क्या हिकमत अमली अपनानी है। बिल्कुल हमें आउट ऑफ द बॉक्स सोचना होगा और रिवायती अंदाज से हटकर हमें नए अंदाज से सोचना होगा। हम कोशिश कर रहे हैं, अगर आपका इनपुट मिलेगा तो हम उसे भी इंशाल्लाह कंसिडर जरूर करेंगे। थैंक यू सर। मैं गुजारिश करता हूँ डॉक्टर जमील मोगल साहब से अपना सवाल करें। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब और सफ़ीर पाकिस्तान और कॉन्सुलेट जनरल साहब एंड दीगर दोस्तों, बहुत शुक्रिया ऐसी मीटिंग अरेंज करने का, जो कि ये वक्त की बहुत ज़रूरत थी और पाकिस्तानी कम्युनिटी के मसाइल इसमें डिस्कस हो रहे हैं और उम्मीद है कि इंशाल्लाह इनका हल भी निकलेगा। बस मैं ये गुजारिश करूँगा कि मैं पाकिस्तान डॉक्टर्स फोरम असील को रिप्रेजेंट करता हूँ यहाँ पे, और यहाँ भी हमने इस मुश्किल वक्त में जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है जो बीमार है, क्योंकि अब सरकारी हॉस्पिटल्स की तमाम ओपीडीज जो इस वक्त बंद है, तो उसके लिए भी हमने मेडिसिन वगैरह का कुछ इंतजाम किया है और राशन वगैरह का भी इंतजाम किया और अल्हम्दुलिल्लाह दिया है और दे रहे हैं और इंशाल्लाह दे देंगे। दूसरी बात ये कि सर, जैसा कि बाकी दोस्तों ने भी जिक्र किया कि बहुत सारी यहाँ पे डेड बॉडीज हैं, बीमार हैं, माजूर हैं, जो प्राइवेट इलाज नहीं करा सकते, फैमिली विजिट पे आए हुए हैं, खरूज निहाई लगा हुआ है, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका खरूज औदा लगा हुआ है, हरूब और अकामे वाले लोग हैं कि जो मुंतजर हैं इस बात के कि उनको वापस भेजा जाए, और शायद कोई गवर्नमेंट ने ऐलान भी किया है कि इस सिलसिले में अगर थोड़ी सी कुछ की जाए कि जो बहुत सारे लोग हैं जो हरूब हैं, अकामा खत्म हुआ है, तो उनको भी पाकिस्तान भेजा जाए। दूसरी बात ये कि सर, जैसा कि पहले जिक्र हुआ है कि पीआईए की फ्लाइट्स इसके लिए नाकाफी हैं, तो सऊदी एयरलाइन और दीगर एयरलाइन की भी मुतल्लिका हुकूमतों से बात की जाए कि वो भी स्पेशल फ्लाइट्स इसके लिए जो है वो अरेंज करें। तीसरी मैं गुजारिश ये करूंगा सर कि यहाँ सऊदी अरब में और इवन हमारे रीजन में भी जेल में बहुत सारे ऐसे कैदी हैं जो बिल्कुल मामूली नौयत के केसेस में है, कोई 700 रियाल, 800 रियाल, 1000, 2000, 5000, 10,000 रियाल के केसेस में वो कोई जेलों में पड़े हुए हैं। क्यों ना इस कोरोना की वबा की सूरत हाल में कोई गवर्नमेंट लेवल पे कोई बात की जाए ऐसी कि उनको भी इस वबा की वजह से और उनको रिलीज किया जाए और उनको रिलीफ दिया जाए। तो ये सर मेरी गुजारिश थी। थैंक यू वेरी मच सर। ओवर टू यू जी। शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने फरमाया फ्लाइट्स का कि फ्लाइट्स में इजाफा किया जाए। डॉक्टर साहब, फ्लाइट्स का इशू नहीं है, फ्लाइट्स आसानी से बढ़ाई जा सकती हैं, पीआईए को भी मुसलसल भेजा जा सकता है। मसला यहाँ उनको अब्सॉर्ब करने का है, मसला हमारी क्वारंटीन फैसिलिटीज़ का है, वो नाकाफ़ी हैं। तो हमें एक रेगुलेटेड तरीके से हमने लाना है, हमें एसओपीज फॉलो करनी है। सिर्फ जहाज में लोगों को बिठाकर वापस लाना तो बहुत आसान है, लेकिन फिर यहाँ से उनको वो जो एसओपीज को फॉलो करना है वो खासा पेचीदा इशू है और उस पर वक्त लगता है, टाइम कंज्यूमिंग है, स्पेस कंज्यूमिंग है। इसलिए एयरलाइन तो सब ग्राउंडेड है। आप किसी एयरलाइन को कहें कि जहाज मुहैया कर दो और लोगों को ले जाओ, वो तैयार हो जाएंगे, और बहुत से लोग तो पे करने के लिए भी तैयार हैं। लोग बेचारे अपनी नॉर्मल टिकट से ज़्यादा भर के भी वापस आने की कोशिश कर रहे हैं। सो फ्लाइट्स इज नॉट एन इशू, द इशू इज क्वारंटीन कैपेसिटी, क्वारंटीन फैसिलिटी, वो हमारे यहाँ नहीं है। वो जैसे जैसे बेहतर होगी उस वैसे वैसे इजाफा होगा। मिसाल के तौर पर जब हमने आगाज़ किया तो हम एक हफ्ते में 2000 लोग ला रहे थे, क्योंकि हमारी क्वारंटीन फैसिलिटी ये इजाज़त देती थी और हमारा सिर्फ एक एयरपोर्ट चल रहा था, वो इस्लामाबाद का था। फिर बहुत लड़ झगड़ के हमने एयरपोर्ट्स में इजाफा किया, दलाइल दे के इजाफा किया, फैसलाबाद खुलवाया, मुल्तान खुलवाया, लाहौर खुलवाया, कराची और ये पेशावर खुलवाया, और उससे हमारी कैपेसिटी में अब इजाफा हुआ है। और अब हर हफ्ते हमारी जो कैपेसिटी है वो 7 से 7,500 तक पहुंच गई है। लेकिन ये भी अगर हम बैकलॉग देखें तो नाकाफ़ी है, इसमें भी इजाफा करने की कोशिश कर रहे हैं। और एक तरीका जो मैंने कहा वो जो अगर हम सेल्फ क्वारंटीन पे हम अपने हेल्थ एक्सपर्ट्स को और सूबों को कायल कर लेते हैं तो फिर इजाफा हो जाएगा। जेल्स का आपने जिक्र किया कि बहुत से कैदी हैं
जो मामूली फाइन्स की वजह से वो वहाँ पड़े हुए हैं। तो ये हमने बिल्कुल टेकअप किया था जब क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान तशरीफ लाए थे। उनसे इस मौजू पर वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने बात की थी, वज़ीर ख़ारजा से मेरी बात हुई थी कि हमारे जो जेल में हैं, जो पेटी क्राइम्स में मुब्तला हैं और जिनके कोई फाइन्स हैं मामूली नौइयत के, वो चुका नहीं सकते, तो अगर उनको वेव ऑफ कर दिया जाए तो उनको रिहाई मिल सकती है। ये हमारे इल्म में है, हमारी जुस्तजू कोशिश जारी है इस पे। मैं सर रिक्वेस्ट करूंगा इस कॉल करें। मेरा ताल्लुक पाकिस्तान हज वॉलंटियर ग्रुप से है और हम किस ग्रुप से? आवाज आ रही है? जरा ऊंचा बोलिए, किस ग्रुप से ताल्लुक है आपका? पाकिस्तान हज वॉलंटियर ग्रुप से मेरा ताल्लुक है और हज एक सऊदी ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर कम्युनिटी में और डिफरेंट जो सेक्ट्स ऑफ सोसाइटी है उनमें राशन तकसीम कर। तो इस सिलसिले में सर हमारा बहुत सारे जो डेरे हैं जहाँ पे मुश्तरका लोग रह रहे होते हैं, लेबर क्लास है, वहाँ जाना हो रहा है। तो जो मुझे सबसे ज़्यादा मतलब वहाँ पे ये फील हुआ जिन लोग जो ज़्यादा मुश्किलात में लोग हैं वो लोग हैं जो इनके आरोप लगे हुए वो किसी भी तौर पे मतलब इलीगल हैसियत में यहाँ पे रह रहे हैं। अब उनका इशू ये है क्योंकि जॉब्स तो खत्म हो चुकी हुई है, अब उनको आगे भी कोई ऐसा चांस नजर नहीं आ रहा कि वो अपने मुल्क जा सकें। अभी तस्लीम अमजद साहिबा ने भी इस इशू को रेज किया था, तो मेरी भी आपसे यही रिक्वेस्ट होगी सर कि वो लोग कहीं मुश्किल हालात में हैं और अगर ये गवर्नमेंट लेवल पे इस इशू को रेज किया जाए सऊदी गवर्नमेंट से तो उनकी ये जो प्रॉब्लम्स है वो भी कम हो सकती है। थैंक यू वेरी मच। जी बिल्कुल ठीक है, अब पहला पॉइंट आ चुका है, हमने नोट कर लिया है और इस पे भी इंशाल्लाह जोर देते हैं। मैं गुजारिश करता हूँ जी जी अदिया साहबा आवाज आ रही है? अदिया साहबा आपने सवाल करना? नहीं जी, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, आपकी आवाज हमें आ रही है, आप सवाल करें ना मेरे साहब से। हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है जी, आप सवाल करें। हेलो अस्सलाम वालेकुम। आपको मेरी आवाज आ रही है, आपकी आवाज हमें आ रही है। यस ये साहब काइंडली अपना स्पीकर ऑन कीजिएगा, स्पीकर थोड़ा सा या म्यूट है या लो है। आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। अब आ रही है आपको आवाज अदिया साहब? आपका स्पीकर गालिबन बंद है, हमें आपकी आवाज साफ सुनाई दे रही है। जी अस्सलाम वालेकुम जी, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच आप सबके टाइम का, बेहद शुक्रिया। जो भी कॉन्सुलेट ने एम्बेसी ने सारे कुछ अरेंज किया है और मुझे कहना था कि कोई डेट अनाउंस करेंगे कि जो पाकिस्तानी डॉक्टर्स जो यहाँ जॉब पे थे और वहाँ छुट्टियों पे गए हुए थे उनका वापसी की कोई डेट अनाउंस होगी, कोई खास फ्लाइट होगी। और सेकेंडली ये कि यहाँ से जो लोग बेरोजगार होके जा रहे हैं बेसिकली वैसे तो जो भी बीमार हैं, मेंटल स्ट्रेस है, उनको कोई ऐसी टीम भी बनाई जाए जो उनको काउंसिल करे, मतलब काउंसलिंग की बेहद जरूरत है। यहाँ पे हमने ऑनलाइन काउंसलिंग की एक टीम है, वो में हम लोग 10 से 12 तक जो भी ऐसे पेशेंट हैं जो कोविड-19 पॉजिटिव पाए रहते हैं उनकी फैमिलीज हैं, तो हम लोग उनको काउंसलिंग में उनकी मदद करते हैं, काउंसिल करते हैं उनको। तो इस तरह की कोई टीम वहाँ भी बनाई जाए। हम लोग हेल्प के लिए एनी टाइम तैयार हैं, कोई ऐसी टीम मरतब की जाए जिसमें
ताकि मेंटली स्ट्रेस बढ़े नहीं, लोग और परेशान ना हो, उनको समझाया जाए, उनको टाइम दिया जाए, फॉरन यस और नो के आंसर्स ना, उनको काउंसल किया जाए प्रॉपर उसमें। तो इसके लिए आपको डॉक्टर्स की हेल्प, साइकोलॉजिस्ट, साइकियाट्रिक जिनकी भी हेल्प दरकार है, हम लोग हाजिर हैं। और यहाँ हमने एक अपनी अलग से यहाँ पे जद्दा में टीम बनाई हुई है, हम 10 से 12 तक 2 आवर्स उसमें हम देते हैं। डॉक्टर साहब, इट्स अ वेरी गुड आइडिया जो आपने जो फ्लोट किया है ऑनलाइन काउंसलिंग का। बिल्कुल लोग स्ट्रेस में हैं, बेपनाह स्ट्रेस में हैं, फ्रस्ट्रेटेड हैं, अपने मुस्तकबिल के बारे में अनसर्टन हैं, और वी आर लिविंग थ्रू अनसर्टन टाइम्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो ये एंजाइटी लोगों की बढ़ी हुई है, इसमें तो कोई शक व शुबा ही नहीं है। तो ये बहुत अच्छा आइडिया है, इसको मैंने नोट किया है। तो इस पे देखते हैं कि हम इसको किस तरह एक मौसर और ऑर्गेनाइज तरीके से हम राइज कर सकते हैं पाकिस्तान में। इंशाल्लाह करने की कोशिश करते हैं। गुड आइडिया, थैंक यू। Mr. Dilani sir, may I request you to please ask your question? Yes, sir, thank you so much. मेरे 2 क्वेश्चन एक सजेशन की है। एक तो आपने काइंडली बता दिया कि गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर है वो ओपन हो गया है। मेरी रिक्वेस्ट ये होगी, जो पाकिस्तानी ज़्यादातर जो ओवरसीज हैं उनकी इन्वेस्टमेंट्स होती हैं रियल एस्टेट सेक्टर में, तो वहाँ भी कोई गवर्नमेंट इस तरह का एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान अगर अनाउंस कर सके, क्योंकि अगर पाकिस्तानी वापस जाते हैं तो उन्होंने एज अ सेविंग अपनी इन्वेस्टमेंट जो है वो रियल एस्टेट में की होती है, ताकि वहाँ से वो फिर उन चीज़ों को यूटिलाइज करके बिजनेस इन्वेस्टमेंट कर सकें या बिजनेस प्लान्स एग्जीक्यूट कर सकें गोइंग बैक। सेकेंडली सर, आपने थैंक यू वेरी मच, आपने मेंशन किया कि आप प्रोविंसेस से डिस्कस कर रहे हैं कि किस तरह से क्वारंटीन की फैसिलिटी को आसान किया जाए, सेल्फ क्वारंटीन पे जाया जाए। मेरी रिक्वेस्ट ये होगी, जो फैमिलीज यहाँ से ट्रेवल करेंगी, देयर लॉट ऑफ फैमिलीज हु आर प्लानिंग टू गो बैक, बाज़ को दे ट्रेवल अलोन, तो उस सूरत में जो फैमिलीज के लिए अगर इस प्रोसेस को स्पीड अप किया जाए कि वो सेल्फ क्वारंटीन की इजाजत उनको दी जाए, क्योंकि ज्यादा पाकिस्तानी जो रहते हैं यहाँ पे उनके घर वहाँ पे खाली पड़े, दे आर ऑलरेडी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। तो उस सूरत में जितनी जल्दी और जितनी आसानी मुहैया की जाए तो फैमिलीज को आसानी मिलेगी ट्रैवलिंग बैक होम। थैंक यू सर। जी जिलानी साहब, बिल्कुल हम कोशिश कर रहे हैं। वो पहले मैं जवाब दे चुका हूँ, उसको दोहराता नहीं हूँ। आपने कहा कि बहुत से लोग जो ट्रैवल करेंगे वो अपनी सेविंग्स हैं उनके पास, वो सेविंग्स को इन्वेस्ट करना चाहेंगे, और रियल एस्टेट इज़ वन एरिया वेयर दे डू इन्वेस्ट। तो रियल एस्टेट के तो जिसके पास सेविंग्स हैं, perhaps this might be a good time in the days ahead। रियल एस्टेट की कीमतों के कम होने के इम्कानात हैं, और अगर ऐसे इम्कानात होते हैं तो दिस इज माइट बी अ गुड टाइम टू इन्वेस्ट इन द रियल एस्टेट। जैसे स्टॉक मार्केट्स जो हैं, आपने देखा कि किस तरह उनने क्रैश किया, तो ऑब्वियसली दे विल नॉट स्टे एट दिस लेवल, दे विल अल्टीमेटली इम्प्रूव। सो अब ये जो अपना बिजनेस एक्यूमेंट की बात है, कौन कहाँ इन्वेस्ट कर सकता है, आई एम नॉट विलिंग टू एडवाइस ऑन दैट। किसी का पैसा डूब जाए तो मैं उसका जिम्मेदार नहीं बनना चाहता, लेकिन अपॉर्चुनिटीज होंगी। देखिए, लेट्स नॉट फॉरगेट, देयर इज ए अपॉर्चुनिटी इन एवरी क्राइसिस। दिस इज अ क्राइसिस, और उस क्राइसिस के अंदर जहां एक इसका भयानक पहलू है, इस भयानक पहलू के अंदर आपने सिल्वर लाइनिंग तलाश करनी है, और निकलती है। हर क्राइसिस में जंगें होती हैं, कहत होते हैं, तो उसमें भी अपॉर्चुनिटीज भी होती हैं। अब ये है, आपको वो आंख चाहिए कि वो उन अपॉर्चुनिटीज को तलाश करे, और अगर वो तलाश कर पाती है तो इम्कानात मौजूद हैं। सर, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, एक चीज क्लैरिफाई करनी थी। मैं रिक्वेस्ट कर रहा था सर, पाकिस्तानी ने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया होता है इन टर्म्स ऑफ सेविंग पाकिस्तान में प्रॉपर्टीज। रिक्वेस्ट ये थी कि अगर गवर्नमेंट कंस्ट्रक्शन सेक्टर को जिस तरह की फैसिलिटी दी गई है, अगर रियल एस्टेट सेक्टर को भी कुछ इस तरह से प्लान किया जाए कि जब ये लोग वापस जाएं तो वहाँ जो इन्वेस्टमेंट्स इन्होंने की हुई हैं उसको मैच्योर करके अच्छे तरीके से, ताकि वैल्यूज थोड़ी बेहतर हो और वो किसी और तरह की उस अमाउंट को डाइवर्ट करके बिजनेस स्टार्ट कर सकें। दैट वाज माय क्वेश्चन। Well, we'll have to look into it कि वो कैसे हो सकता है। I cannot off the cuff तो मैं इसका जवाब नहीं दे सकता, मैं एग्जामिन कर सकते हैं।
यू सर। मैं अब दावत देता हूँ अमीर अहमद शेरवानी साहब से वापस बात करें। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है। सर मैं सऊदी अरब में शहर इंसान वहाँ से बात कर रहा हूँ। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं पाकिस्तान इस्लाम कमेटी कि आपने अपने कीमती वक्त निकाला और एक बात याद जाहिर करते कि हम भारत में हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा कोरोना वायरस के केसेस नहीं है। इसके बावजूद सऊदी गवर्नमेंट ने कुछ लोगों को एक साइड पर रखा है जिन्हें कोरोना वायरस पाया जा रहा है 10 साल में। राशन की जहाँ तक बात रही जितना कॉन्ट्रैक्ट बात कर रही है तकरीबन अब ये हुए 700 कुछ लोगों को राशन पहुंच चुका है यहाँ पे 760 लोगों को। और ये डॉक्टर असद साहब आए थे उन्होंने राशन की बात की फंड की तो जिम्मे तो शहर का जो है नहीं, ये 707 लोगों को राशन कहाँ से मिला है? ये मुश्तरका पाकिस्तान कॉन्ट्रैक्ट से आता है लोगों से अरेंज भी किया जाता है और इस पे मादी रली नहीं, इसके फंड्स जनरेट कैसे होते हैं? सर मुश्तरका दे दिया जा रहा है ये तो शहर का से और पाकिस्तान कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू जो हम लोग आते पाकिस्तान के लोग इंतजाम कर रहे हैं इसमें 150 आदमियों का कंफर्म डेटा कॉन्ट्रैक्ट से आपको हमारे पास। अच्छा ठीक है। और दूसरे सऊदी हुकूमत जो खैरियत नाम का एक नारा है वो यहाँ पे राशन तकसीम करने के निजाम में और सऊदी में रियाद में जिन लोगों को नहीं पता उनको जिन्हें खैरियत का एड्रेस दिया जाए वो एकाने का नंबर लेके उस बात को राशन पहुंचा रहे हैं बाकायदगी से। और निजाम के अंदर किसी भी किस्म का कोई भी पेशेंट है पाकिस्तानी उसको इलाज फ्री दिया जा रहा है। कोरोना वायरस के 2 जो है मौजूदा प्लस पाए गए हैं वो हॉस्पिटल में है। बाकी एक 5 स्टार होटल है यहाँ जिसका नाम है इस्लाम किंग उसमें 24 पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने रखे हुए हैं जिनका भी कोई चार्जेस नहीं ले रहे वो इलाज का खाना पीना हर चीज की सहूलियत मौजूद है। इस बात से सऊदी गवर्नमेंट के हम शुक्रगुजार हैं और सबसे मेन हमारी पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से दिए गए ऑर्डर जो सफीर पाकिस्तान है शेख शकूर साहब भी हैं वहाँ पे और जद्दा कॉन्फ्रेंस उसमें बहुत ज्यादा ताउन कर रही है। 24 घंटे में पाकिस्तानी यहाँ इंतकाल हुआ है नहीं काम किया पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस में उसकी मैयत का हमने इशू किया और उसको दफनाने के इंतजाम कर दिए और हमने उसको दफनाया यहाँ पे। हम बहुत शुक्रगुजार हैं जब कॉन्फ्रेंस के पाकिस्तानी कि वो भरपूर हमारे ताउन कर रही है। बाकी जो सब लोग शिकायतें थोड़ी बहुत कर रहे आने की जाने की इसलिए आपने हमें मुतमईन कर दिया कि पाकिस्तान में प्रॉब्लम है इसके राइट्स के जा रहे हैं क्योंकि हम लोगों को कहने ये आ रहा है कि शायद सऊदी गवर्नमेंट या पाकिस्तान गवर्नमेंट राइट्स का कर नहीं रहे लेकिन अभी आपकी बात से हमें बहुत तसल्ली हो गई है कि यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम नहीं है प्रॉब्लम पाकिस्तान की। ये हमने सब एम्बेसीज को मिशंस को मैंने हिदायत भी भेजी थी कि वजूहात बताई थी कम्युनिटी को एक्सप्लेन करने के लिए। मैं अब भी समझता हूँ कि एम्बेसडर साहब को वो कम्युनिकेट करनी चाहिए लोगों को ताकि जो लोगों में गलत फहमियाँ हैं वो दूर हो सकें। तो मुझे खुशी है जानकर कि यहाँ राशन भी दिया जा रहा है फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट भी सऊदी अरब दे रही है। अभी तक मैंने जो जितनी गुफ्तगू सुनी है बड़ी हौसला अफजा है और एम्बेसी के बारे में काउंसलेट्स के बारे में बड़ी अच्छी बातें हो रही हैं। किसी को जितने भी 55 लोग बैठे हैं किसी को कोई शिकायत नहीं है। इट्स टू गुड टू बी ट्रू। कहीं ये मतलब है कोई ये एम्बेसी के साथ कोई मुकमुका तो नहीं है आप लोगों का यू स्क्रैच माई बैक आई स्क्रैच योर्स। मैंने कहा सब अच्छी बातें हैं खुदा करे ऐसा ही हो अल्लाह करे जो आप कह रहे हैं जो आप जो फीडबैक दे रहे हैं खुदा करे ऐसा ही हो क्योंकि कई दफा मुझे वीडियोस आती हैं कुछ शिकायत भी आती हैं। मैंने देखा है अभी तक किसी ने कोई शिकायत नहीं की विच इज टू गुड माशाअल्लाह। नजरे बद से अल्लाह आपको महफूज रखे। किसी की कोई दिक्कत कोई शिकायत ये हाथ खड़ा किया अपना क्या नाम है यहाँ शबरेज साहब आप बात कीजिए। शबरेज जी। मैं एक छोटी सी गुजारिश करना चाहूंगा। मेरा
तलब तो पीटीआई से है, मैं प्रेसिडेंट हूँ पीटीआई जामा रीजन का, लेकिन ओवरसीज पाकिस्तानी के मिसाइल जो हैं वो बयान करना मैं फर्ज समझता हूँ और इंशाल्लाह अपनी कोशिश करूंगा कि तमाम मिसाइल को आपके सामने। सर नंबर एक तो ये है कि जब पाकिस्तान से रिक्रूट होते हैं ओवरसीज पाकिस्तानी, तो जो एजेंसियां रिक्रूट करती हैं उनका कोई प्रॉपर एग्रीमेंट नहीं होता, कॉन्ट्रैक्टर तो बनता है लेकिन ठीक तो किया था। जब वो इधर पहुंचे तो उनके पहले तो उनको काम नहीं मिलता, काम मिलता है तो उनको सैलरी नहीं मिलती, उनके अकामे नहीं बनते, अकामे ना बनने की वजह से उनके कागजात मुकम्मल नहीं होते और वो इलीगल डिक्लेयर हो जाते हैं। इलीगल डिक्लेयर होने की वजह से उनके रूब आ जाते हैं, वो वापस भी नहीं जा सकते। अब उनको सैलरी नहीं मिल रही है, उनकी फैमिली उनका इंतजार कर रही है। अगर फॉर एग्जाम्पल किसी को कुछ सैलरी मिल भी रही है 50%, तो 6 महीने साल के बाद एक अच्छी खासी लाइबिलिटी के तौर पे एक अमाउंट बन जाती है जिसको वाजबात की शक्ल में आप कह सकते हैं। जब वो तंग आ जाता है साल 1.5 साल के बाद, तो वो अप्लाई करता है कोर्ट के अंदर। जब कोर्ट के अंदर अप्लाई करता है तो 2-3 साल तक उसका केस चलता रहता है, वो अपना 50-60 हजार लेने के लिए। जब केस उसके हक में आ जाता है उसके बाद आगे हिस्ट्री उसको या वैसे इतना सपोर्ट नहीं करती कि उसको पैसे दे के दे, फिर उसको कम से कम 2-3 साल इंतजार करना पड़ता है कि जो केस मैंने जीता था 6 महीने साल या 3 साल में लगा के उसकी मैं रकम को उठा लूं। लेकिन ऐसा नहीं होता। केस के दौरान अगर वो पाकिस्तान जाना चाहे इमरजेंसी नहीं जा सकता। अब मैं दूर की बात कैसे करूं? एक हमारे अपने पाकिस्तानी मिनिस्टर की कंपनी है अलियांड स्टोन, उन्होंने मार्च में सब लोगों को बुला के कोरोना वायरस शुरू हुआ तो उनके टर्मिनेशन लेटर पे साइन करवा लिए। टर्मिनेशन लेटर पे साइन इसलिए लिखवाए कि आपको हम पाकिस्तान भेज रहे हैं। अब उनकी आगे से सैलरी बिल्कुल कट होगी। पिछली 6 महीने की साल की सैलरी उनकी पेंडिंग में है। उनके बच्चे उधर बिलक रहे हैं, वो लोग इधर बिलक रहे हैं। अब एम्बेसी और एम्बेसी के जितने भी लोग अभी तक मैंने सुना साहब बोल रहे हैं बहुत अच्छा है, लेकिन आजाद वीजों पे आए हुए लोगों के पास काम नहीं है, फारग बैठे हुए हैं। एक जगह पे 30-30 लोग हैं, उनको कोरोना वायरस से आजाद वीजा नौकरी के कंफर्म हुए तो चले जाते हैं वहां पर जाकर के नौकरी। ये जितनी भी लीगल प्रॉब्लम्स हैं ये सारी की सारी आम माफी के बगैर खत्म नहीं होती। कसम से मैंने रात को पोस्ट किया फेसबुक पे, पूरी रात मेरे को मैसेज आते थे, लोग रोते थे और ये कहते थे कि खुदा के लिए हम अपना जो क्लेम है 2 लाख का, 3 लाख का, 4 लाख का वो नहीं देते, हमें माफी दे दो, हम वापस अपने बच्चों के साथ जाके गुजारना चाहते। लोग गैर शहरी और अफ्तारी के रोजे रख रहे हैं। ये कौन सा लोग अच्छे की बात कर रहे हैं? 80-90% लोग जॉबलेस हैं, 2 महीनों से वो घर में बैठ के खाना खा रहे हैं। और जिस राशन स्कीम की आप बात कर रहे हैं उसमें पासपोर्ट होल्डर तो अप्लाई नहीं कर सकता। पासपोर्ट चाहे वो पाकिस्तान में या आउट है, पासपोर्ट होल्डर आसान प्रोग्राम में अप्लाई नहीं कर। सर प्लीज ओवरसीज पाकिस्तानी के लिए स्पेशल कोई पैकेज बनाए ताकि जो भूखे लोग मर रहे हैं, जो कोरोना से मर रहे हैं, वो मरने से बचे। फ्लाइट जल्द अज जल्द ज्यादा सुधार में लगाएं। जिस तरह जुल्फी बुखारी ने वादा किया 2 फ्लाइट का, उस तरह तो 1 महीने में 1000 बंदा जाएगा पाकिस्तान। इधर आपको अम्बेसडर साहब ने जो फिगर थी वो 2 साल में जाके कवर होगी और ये दिन ब दिन बढ़ती भी जाएगी। सर कोई प्लानिंग इस तरीके से करें कि कोई एग्जिट प्लान हो, 2, 3, 4, 5, 6 महीनों में आपने एग्जिट करना है। उस हिसाब से इतनी फैक्ट्री हमें मस्ट चाहिए विद इन मंथ। देखिए आप शबीर साहब सुनिए अगर मैं बात करूं तो सर लोग खुद 6,000 एमरेट को पे करके जा रहे हैं, उसमें ना कोई हुकूमत का दखल है, ना कोई मैसेज का दखल है, किसी बंदे का कोई दखल नहीं है। अगर हम लोग एज ए पीटीआई गवर्नमेंट साथ नहीं कर सकते तो ये काम तो 2 साल पहले भी इसी तरह करते थे। हमने इन 2 सालों में क्या इनपुट किया है? सर ये मेरा क्वेश्चन है आपको। बिल्कुल सही है आपका क्वेश्चन। सवाल ये है कि आप चाह रहे हैं और बहुत से लोगों ने पहले भी ये बात की है कि लोग फौरन वापस चले जाएं। मैं आपको पहले भी समझाने की कोशिश कर रहा था कि वापस फ्लाइट्स का इशू नहीं है, फ्लाइट्स बंदोबस्त हो जाएगा।
लेकिन यहाँ लाकर जो हमें जो लवाजमात पूरी करनी पड़ती हैं उसमें दिक्कत आ रही है। जब तक उसमें सूबे तावन नहीं करेंगे, अपनी जो SOPs हैं उनमें नरमी और नजरसानी नहीं करेंगे, हम लोगों को फ्लाइट से ज्यादा ना बढ़ा सकते हैं ना ला सकते हैं। ये प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज है, नंबर 1। नंबर 2, देखिए डेस्कॉन का आपने जिक्र किया, मैं समझ गया हूँ। वहाँ मुझे कोई उसकी कोई आपके पास मिसाल है, कोई उसकी कोई आपके पास, हाँ ये भिजवाइए, ये ऐसे कीजिए, इसको व्हाट्सएप कीजिए, इसको व्हाट्सएप कीजिए, तो मैं जो डेस्कॉन के मालिक हैं मैं उनको दिखाऊंगा, मैं उनकी खिदमत पे पेश करूंगा कि ये मुझे सऊदी अरेबिया से डायरेक्ट फीडबैक मिला है, प्लीज लुक इनटू दिस। और उनके कई हजार लोग वापस आना चाहते हैं, तो मैं उनको दिखाऊंगा कि ये देखिए, इसको एग्जामिन करें कि आपके लोग वहाँ क्या कर रहे हैं। तो उनसे पूछा जा सकता है, मुझे ज़रूर इसको व्हाट्सएप कर दीजिए इस खत को, तो इसको हम देख लेते हैं। बाकी देखिए लोग जो गए हैं आज़ाद वीज़ा पर, आज़ाद वीज़ा पर जो जाता है वो एक रिस्क लेता है, उसकी वहाँ कोई एम्प्लॉयमेंट कंफर्म नहीं होती, और वो रिस्क लेता है, चला जाता है, मजबूरी उसको भेजती है, इकोनॉमिक मजबूरी उसको फोर्स करती है वो जाए, और उनको दिक्कतें आ रही हैं, बिल्कुल आ रही हैं। ये तो जो आपने जो इश्यूज जो आपने हाईलाइट किए हैं, ये कोरोना रिलेटेड नहीं है, ये कोरोना से पहले भी इश्यूज थे और ये कोरोना के बाद भी रहेंगे, ठीक है ना जी। हाँ, इसको देखा जा सकता है, इसमें कैसे किया जा सकता है। बीच में मिडिल मैन होते हैं, कॉन मैन होते हैं, ये जो अपना ये जो एजेंट्स होते हैं, वो 2 नंबरी करते हैं, लोगों के साथ हाथ करते हैं, इधर भी लोगों को लूटते हैं, उधर भी जाके लोग ख्वार होते हैं। तो उसमें उन मैकेनिज्म्स को बेहतर करने की जरूरत है। उससे डायरेक्ट फॉरेन मिनिस्ट्री डील नहीं करती, उससे डील करती है ओवरसीज मिनिस्ट्री। तो ओवरसीज मिनिस्ट्री से बिल्कुल मैं जुल्फ़िकार बुखारी साहब से बिल्कुल बात करूंगा कि ये इशू है, ये सिर्फ सऊदी अरेबिया के नहीं है, बहुत से गल्फ ममालिक का इशू होगा, तो इस पर वो जरूर अपनी तवज्जो इस तरफ करें। थैंक यू सर। मैं दरख्वास्त करता हूँ मंसूर मेमन साहब से कि वो स्पॉट करें। मंसूर मेमन साहब, आपको आवाज आ रही है? सर मुझे आ रही है। ये सवाल करें प्लीज। मैं एक्सीलेंसी मिनिस्टर साहब आपकी इस बात को आगे बढ़ाते हुए कि कोई शिकायत नहीं कर रहा, आई थिंक वी शुड टेक क्रेडिट कि आपने अपनी बेहतरीन फॉरेन ऑफिस और ओवरसीज की टीम यहाँ मुतैन की है सऊदी अरब में कि खुशहाली है इस कोविड-19 की डेवास्टेटिंग इफेक्ट। सर मेरी आवाज आ रही है? जी आपकी आवाज तो बिल्कुल आ रही है, आपका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा मुझे। जी सर, तो मैं जो छोटी सी बात करना चाहता कि जब हम पाकिस्तान से यहाँ जॉब की आते हैं तो स्टेट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेके आते हैं। वो पॉलिसी मेरे ख्याल में इनिशियली शायद 5 साल के लिए होती है, फिर उसका रिन्यूअल होना होता है, लेकिन हालात में आके कागजों में अंबार में पॉलिसी की दफन हो जाती है, उसका कोई रिन्यूअल नहीं होता। या इस वक्त कोविड-19 में पॉलिसी की एक चीज ये भी है कि पॉलिसी होल्डर्स के इंटरेस्ट और वेलफेयर को सिक्योर किया जाए। अभी वो जो तमाम अफराद जो कि लोअर स्किल हैं या डेली वेजेस पे जो कि बड़ी परेशानी में आ गए हैं, तो दे शुड बी बेनिफिटेड बाय दैट स्टेट लाइफ पॉलिसी। तो लेकिन वो हो सी नहीं रहा कि स्टेट लाइफ का कोई मैकेनिज्म पाकिस्तान की तरफ से यहाँ सऊदी अरब में नहीं है, या तो उनकी कोई ब्रांच यहाँ पे ऑफिस हो या एम्बेसी और काउंसलेट को कैसा मैकेनिज्म दिया जाए स्टेट लाइफ को पॉलिसी रीएक्टिवेटेड भी हो और उसके जो पॉलिसी होल्डर्स ड्राइव द बेनिफिट्स एंड द रिक्वायर्ड एंड दिस कमेंट माने लीजिए कुछ भी बात में दो मेरा सवाल घर से है और वहाँ पे आपकी काफी हमने घर में पिछले 6 महीनों में बड़ा काम किया है। हमने फैमिली को राशन प्रोवाइड किया है और काफी लोगों के लिए एक कंटिन्यूस आमदनी का
भाईचारे के काम शुरू किया हुआ है। मतलब आई थिंक दिस इज वेरी पॉजिटिव इम्पैक्ट कि हम फूड बैठे भी कुछ कर सकते हैं इस एहसास के साथ। ये एहसास प्रोग्राम अटल फैला है। बहुत शुक्रिया। मौजूद साहब, आपने एक अच्छा नुक्ता उठाया है स्टेट लाइफ इंश्योरेंस का, पॉलिसी का, कि पॉलिसी शुरू में होती है फिर उस पर अमल दरामद नहीं होता। अब ये देखने वाली बात है क्यों नहीं होता। कसूर कंपनी का है, स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का है, या फिर वो लोग जो पॉलिसी लेते हैं और फिर इसको डिसकंटिन्यू कर देते हैं। तो इसको एग्जामिन करने की जरूरत है। पर इट्स अ वैलिड पॉइंट, दिक्कत है। उसका बुनियादी तौर पर इसको इंट्रोड्यूस तो इसीलिए किया होगा कि लोगों को प्रोटेक्ट किया जा सके, लेकिन उनको उसका फायदा नहीं पहुंच रहा, तो उसको एग्जामिन किया जा सकता है। आई कैन पॉइंट इट आउट, आई कैन राइट टू द चेयरमैन ऑफ स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कि जी मुझे ये फीडबैक मिला है सऊदी अरेबिया से, तो आपकी पॉलिसीज पर अमल दरामद क्यों नहीं हो रहा, मुझे बताइए। पहले तो हम समझे ना कि हो रहा क्यों नहीं है, रुकावट क्या है अंदर, मुश्किल क्या है। तो जब समझ आएगी तो उसका हल भी तलाश करते हैं। Thank you, sir. I now request Dr. Khalid Abbas Saqib to please place his question. Thank you. साहब अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो ये बात है कि आपका चेहरा जो है वो मदीने में देखा जा रहा है। मैं मदीना की मुअत्तर हवाओं और फिजाओं से हो रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं इस बात पे इंतहाई मसरूर हूँ कि पाकिस्तान एम्बेसी ने, जद्दा कौंसलेट ने ये जो एक मोहब्बतों का खैमा लगाया है, एक डिस्कस किया है एक बहरान को, मैं इस पर पूरी कौम को सलाम करता हूँ। और मेरा यकीन इस बात पे हो गया है कि बहरानों से उभरने वाली ये पाकिस्तानी कौम बड़ी अजीम है। हम कल भी एक थे और आज भी एक थे। कोरोना की वबा हो या दूसरी बलाएं, पाकिस्तानी कौम जो है वो ऐसे बहरानों में उभरती है। देखिए, ये एक आलमी तूफान की तरह ये जो कोरोना है वो पूरी इंसानी तहजीब को और आदमियत को अपनी लपेट में लिए हुए है। और पाकिस्तान भी एक ऐसा ही मुल्क है, लेकिन इसके बावजूद हमारी कौम ने मुआशी मजबूरियों के बावजूद कौम जो है उस बहरान के सामने, उस मुसीबत के सामने एक शीशा पिलाई दीवार की तरह खड़ी। इस पे मैं पूरी पाकिस्तान कौम को खराज तहसीन पेश करता हूँ। पाकिस्तान के वो डॉक्टर जो फ्रंट लाइन पे मेरी तरह लड़ रहे हैं वबाओं के साथ, मैं उनको सलाम करता हूँ। जिन्होंने अपनी जान वतन की मोहब्बत में, इंसानियत की मोहब्बत में दी है, मैं उनको भी सलाम पेश करता हूँ। जहाँ तक सऊदी अरेबिया की गवर्नमेंट का तल्लुक है, इन्होंने यहाँ के मुवातिनीन के लिए, बाहर वाले लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है कि ये जो कोरोना को जो इलाज है वो बिल्कुल मुफ्त जारी है। और इवन उन लोगों का भी इलाज किया जा रहा है जिनके पास इकामा नहीं है, कोई उनके रोक टोक नहीं। तो मैं सऊदी अरेबिया की हुकूमत को भी इस इंसानियत नवाज रवैये पे सलाम पेश करता हूँ। बाकी रहेगी सर राशन की, मैं मदीना के हवाले से बात करता हूँ और एक मिसाल देता हूँ कि 2 दिन पहले की बात है, किसी शख्स ने, बिलाल उसका नाम है, उसने एम्बेसडर साहब को हेल्पलाइन पे कॉल किया। एम्बेसडर साहब ने उस कॉल को रिसीव किया कि उसके पास राशन नहीं है। उन्होंने जद्दा में कौंसल जनरल साहब को कहा, कौंसल जनरल साहब ने शाहिद भुट्टो साहब को और माजिद साहब को कहा, उन्होंने मुझे फोन किया। तो वो लड़का जो था वो उस इलाके में जहाँ पे लॉकडाउन है, लेकिन इसके बावजूद ये हमारा एक टीम वर्क समझ लें कि वो जो है वो राशन उस बंदे को आज पहुंचा है। और ऐसे रोज ही केसेस हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि मेरे पास भी बड़ा वक्त है कि मैं तनकीद करूँ अपनी हुकूमत पे, अपने लोगों पे, अपने मसाइल पे, लेकिन ये वक्त जो है तनकीद का नहीं है, मुल्क की ताईद का है। मट्टी की मोहब्बत में हम आशुक्ता सरों ने वो कर्ज उतारे हैं जो वाजिब भी नहीं। बस एक गुजारिश मैं करना चाहता हूँ कि यहाँ पे मदीना रीजन में पाकिस्तानियों के दरमियान इस वक्त राब्ता कोई नहीं। तो पाकिस्तान हाउस जिसको बंद किया हुआ है यहाँ पे, वहाँ पे हमारे खाने का कोई बंदा हो, हुकूमत का कोई बंदा हो, जो लोग यहाँ पे फैले हुए हैं जिनको प्रॉब्लम है, वो अपनी प्रॉब्लम जो है इस पे एक राब्ता हाउस बनाइए।
ये पाकिस्तान हाउस को राब्ता हाउस बनाएं ताकि हमारे लोग वहां तक रसाई हासिल कर सकें और उनको मदद दी जा सके। मैं वाकई हिज एक्सलेंसी सबीर साहब को, कौंसल जनरल साहब को, उनकी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि जिस तरह उन्होंने मुतासरा इलाके को संभाला है, एक टीम की तरह वर्क किया है और हम जैसे लोगों को भी इसमें शामिल किया है, तो मैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ। और मेरी आपसे गुजारिश ये है सर कि यहाँ से जो लोग जाते हैं, अब यहाँ से लोग बीमार भी जाएंगे, मैयतें भी जाएंगी और मुआशी हालात से अब तक लोग भी जाएंगे। आते ना हूँ सर, आप वजीर खारजा नहीं, हमारे दिल के दाखिला के भी वजीर हैं, आप पीर भी हैं और हमारे वीर भी हैं। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि इस दुख को समझे जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी पे है, जो अपने पसीने से ज़रे मुबादला का तबादला अपने पसीने से करते हैं। अब उनके जब ये वापस जाएं तो उनके खानदानों के लिए, उनके बच्चों की तालीम के लिए प्लीज कोई ना कोई जो है वो मंसूबा बनाए। जो बात मैं आखिर में कहना चाहता हूँ कि ये कौमी मसला है, ये बहरान एक कौमी बहरान है, तो मैं समझता हूँ कि इस कौमी बहरान के लिए अभी भी जो एक मुअस्सर हिकमत अमली और मुअस्सर मनसूबा बंदी जो होनी चाहिए थी, वो अभी तक हमें कहीं कहीं उसकी वो नजर नहीं आई। तो मैं इस हवाले से पूरी कौम को एक पैगाम देना चाहता हूँ आपके जरिए कि आइए इस मौके को जाया करने के बजाय अपनी एक कुव्वत बनाए। एक इस कोरोना जो है उसका रोना हम रोए जरूर, उसको फाइट भी करें। और आज मैं पाकिस्तान के 22 करोड़ आबादी के उठे हुए 44 करोड़ हाथों पे ये वबा, ये जो कोरोना है उसके नाम के जो परचम है, उनको देखकर मैं पूरी कौम को कहता हूँ कि आइए, ये वक्त बैठने का नहीं है, इस वबा से लड़ने का है। और मुझे उम्मीद है कि हम इस वबा से इस जंग जीतेंगे, इंसानियत जीतेगी। ये कोरोना जो है यही हारेगा इंशाल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद। मैं आपसे एक तो इसका मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने आज जो है ओवरसीज पाकिस्तानी का और पुराने मुल्क पाकिस्तानी का एक ब्रिज आप साबित हुए हैं। मैं आपको सलाम करता हूँ। थैंक यू डॉक्टर खालिद अब्बास साहब, बहुत आपने कहते हैं ना नसर में आपने शायरी को परो दिया है। तो आपकी बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू थी। पर आपने जो मिसाल दी है बिलाल की, दैट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। देखिए ये है, आपने एक हवाई बात नहीं की, आपने एक केस को रेफर किया है और मुझे खुशी है जिस तरीके से बिलाल को रीच किया गया। और हमारे जो सीजी जद्दा के हैं, अगर मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो वो मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। उन्होंने जिस तरह रिस्पॉन्ड किया तो थैंक यू फॉर डूइंग दैट। और इस किस्म की जब मिसालें आती हैं तो इससे ज़ाहिर होता है कि लोगों में इंसानियत है और वो लोगों की खिदमत कर रहे हैं। शुक्रिया। इंशाल्लाह बिल्कुल ये पाकिस्तानी कौम जिंदा है और इंशाल्लाह इससे ओहदा बरा होंगे। वक्ती मुश्किल है लेकिन इससे निकल आएंगे इंशाल्लाह, कोई ऐसी बात नहीं है। Thank you, sir. I now request Zahid Sindhu sir, आप अपना सवाल करें। Zahid Sindhu sir. थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू वेरी मच मिस्टर सर, आपका भी बहुत शुक्रिया जी, और एक्सीलेंसी आपका और आपकी टीम का, स्पेशली वेलफेयर विंग का बहुत शुक्रिया जी, जो महत्वपूर्ण मसाइल के अंदर रह के 2.5 मिलियन पाकिस्तानी के लिए काम कर रहे हैं। शिकायत यकीन होगी कि 2.5 मिलियन पॉपुलेशन के पाकिस्तानी कहीं भी दुनिया के सऊदी में है। तो मैं अपने सवाल कम और साथ में दरख्वास्त किया, 2 सवाल हैं कि सफीर साहब ने फरमाया था कि 2.4 मिलियन पाकिस्तानी यहाँ पे सऊदी में है, वो ऑलमोस्ट इतने ही जीसीसी के बाकी कंट्रीज में हैं जो इकोनॉमिक वीजास पे है। और इससे कई गुना ऐसे होंगे जो पहले आए, कॉन्ट्रैक्ट पूरा किया और अपने बेनिफिट लिए, खुशहाली हासिल की और वापस चले। ये सारे पाकिस्तानी हैं जो किसी न किसी ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट पर वोटर के जरिए रिक्रूट आए, एम्प्लॉयमेंट वीजास पे आए, और जब उनका वीजा लगता है तो प्रोटेक्ट से पहले यूपीएफ के फंड में, वेलफेयर फंड में 2500 रुपया जमा करवाते हैं, जो आजकल एक साल में तकरीबन 700-800 मिलियन रुपीस बनते हैं, जो पिछले 3 दहाइयों से जमा होते हैं। इस ओवरसीज फंड जो वेलफेयर फंड है, इस पे उन पाकिस्तानियों का है जो एम्प्लॉयमेंट वीजास पे
मिडिल ईस्ट में या दुनिया के किसी मुल्क में एम्प्लॉयमेंट वीजा पे गए हैं, खुद मुलाजिमत कर रहे हैं, ओपीएफ की पास हमारा ये अमानत है, इसको दुनिया पाकिस्तानी हमारे भाई हैं, ये फंड उन पाकिस्तानियों का है जो एम्प्लॉयमेंट वीजा पे फंड जमा करके आए हैं, तो इसको प्लीज इस्तेमाल ना करें। अगर जरूरत है खड़े वक्त में तो ये फंड इन पाकिस्तान पे इस्तेमाल होना चाहिए। और डॉक्टर साहब ने जो फरमाया कि स्टेट लाइफ के पास भी वो भी 2030 रेशियोज होती है। इतना सेफ कंट्रीज हैं, गल्फ कंट्रीज के जहाँ पे बहुत कम क्लेम रेशियो होती है, तो वो सारा पाकिस्तानी स्टेट लाइफ का पड़ा हुआ है, उसको भी यहाँ इस्तेमाल करते हैं मेरे पास में। सही है जो सिलेक्ट कर रहा है कि 2016 16 में 15 में भी एक क्राइसिस आया था यहाँ पे, और वो क्राइसिस में तमाम ममालिक के वर्कर्स के लिए आया था जो सऊदी में रह रहे थे, लेकिन अपने सोशल मीडिया के शुरू में इतनी खूबसूरत सुना के ऐसा प्रॉब्लम पैदा किया था कि जब वो गुजर गया तो फिर सऊदी एम्प्लॉयर्स के लिए पाकिस्तानी वर्कर आखिरी वक्ती बन गया। मुझे डर है कि अब भी अगर हुकूमत पाकिस्तान वो सोशल मीडिया तस्वीरों पे एक्शन लेना शुरू कर देगी तो शायद हम दोबारा इंशाअल्लाह कोरोना खत्म होगा, जिंदगी अपनी रफ्तार से दोबारा चलेगी और हमने इस पर अपना शेयर लेना है। अगर आपने अपना इमेज खराब कर दिया तो एम्प्लॉयर के लिए वर्कर की स्किल के साथ साथ उसका एटीट्यूड और उसका रवैया बड़ा मैटर करना होता है। तो मेरी दरख्वास्त है कि दोबारा सोशल मीडिया में वो तस्वीरें शुरू हो गई हैं, अगर हुकूमत पाकिस्तान ने एक पोर्टल बनाया हुआ है इसको वहां पे जाए, अगर इस तरह करेंगे तो अल्टीमेटली ये मार्केट हमारे हाथ से निकल जाएगी। थैंक यू वेरी मच। ये अपना जाहिद सिंधु साहब, आपने बहुत उम्दा बात की है, बहुत पते की बात की है। अब ये समझने वाले अगर समझें तो आपने बड़ी उनको एक नसीहत की है कि वक्ती तौर पर 2 मिनट की शोहरत के लिए या मतलब है वक्ती वाह के लिए वो पूरा अगर मुल्क का इमेज दाव पे लगा देंगे तो अल्टीमेटली उनको नुकसान होगा। जो आपका जो एम्प्लॉयर है वो कतराएगा, आपको इंगेज करने से, आपको एम्प्लॉय करने से कतराएगा कि ये भी पाकिस्तानी है, इनको तो ये रवैया है, ये है, वो है, और फिर देखें लोग और लोगों की तरफ तलाश है। और इस वक्त देखिए जो दुनिया जिस कैफियत से गुजर रही है, देयर विल बी नो शॉर्टेज ऑफ पीपल। लोगों की हर दुनिया के हर इलाके से लोग तैयार होंगे और जो एम्प्लॉयर है उसकी चॉइस बहुत बढ़ जाएगी। वो अपनी टर्म्स जो हैं वो अपनी टर्म्स पे लोगों को लेगा। तो ये दिक्कतें हैं क्योंकि जो सबसे बड़ा चैलेंज जो कोरोना का दिखाई दे रहा है वो बेरोजगारी का चैलेंज है। और जब लोग बेरोजगार होते हैं तो ऑब्वियसली जिसने एम्प्लॉय करना होता है वो ज़्यादा डिक्टेट करता है और अपनी शराइत पर लोगों को वो लाने की कोशिश करता है। उसमें बहुत ज़रूरत है कि पाकिस्तान का जो वर्कर है, पाकिस्तान का जो इमेज है वो मुतासर न हो और वो इमेज बरकरार रखें। तो सोशल मीडिया के फ़वाइद भी हैं, इसके नुकसानात भी हैं। आप भी अपनी कम्युनिटी को, जो पाकिस्तानी कम्युनिटी सऊदी अरेबिया में रहती है, उन्हें गुजारिश करें कि वो इस किस्म की मनफी वीडियो से जो है क्लिप से वो अपने आप को नुकसान पहुंचा सकते हैं। हाँ, जायज़ दिक्कतें हैं, शिकायत हैं, तो उनके लिए, उनके इजहार के लिए मुनासिब तरीका है। अब देखिए मुझे किसी ने कहा तो नहीं कि ये मैं आपसे इंगेज करूं, मेरे पे कोई कदगन नहीं थी, ये मुझे फॉरेन ऑफिस ने भी नहीं कहा, मुझे सफ़ीर साहब ने भी नहीं कहा, ये मैंने खुद कहा। खुद मैंने ये फैसला किया कि मुझे इन हालात में आप लोगों से इंगेज करना चाहिए ताकि मुझे हर मुल्क की कैफियत का इल्म हो। मैंने अमेरिका में बात की है, मैंने बरतानिया में बात की है, आज मैं सऊदी अरेबिया कर रहा हूँ, मैं अगले चंद रोज़ में यूएई से बात करूँगा। इससे जो डायरेक्ट फीडबैक मिलता है, लोगों के तासुरात मिलते हैं। अब इसमें से बहुत सी बातें आपने की हैं जो मेरी नॉलेज में इजाफा हुआ है, मुझे आपने एजुकेट किया है, मुझे आपने बहुत सी मालूमात में मेरा इजाफा हुआ है। तो इस इंटरेक्शन से ये टू वे जो कम्युनिकेशन है ये बहुत मुफीद है। पिछली जो हमारे थे डॉक्टर खालिद अब्बास साहब, उन्होंने एक जिक्र किया था कि जो हमारा पाकिस्तान हाउस है वो मदीना में वो बंद पड़ा है। मैं
वैसे साहब पूछ सकता हूँ कि पाकिस्तान हाउस मदीना में बंद क्यों पड़ा है? Would you like to respond, Ambassador साहब? मदीना में पाकिस्तान हाउस कह रहे हैं बंद है और वो एक कम्युनिकेशन का राब्ते का एक जरिया बन सकता था, तो मैं पूछना चाह रहा हूँ जस्ट फॉर माय इंफॉर्मेशन कि वो बंद क्यों है? अस्सलाम वालेकुम, दिस इज खालिद साहब, द काउंसिल जनरल ऑफ पाकिस्तान जिद्दा। सर ये बेसिकली पाकिस्तान हाउस क्योंकि प्राइमरी यूज एज अ रेजिडेंशियल फैसिलिटी, ये इट लाइज विद द पैरामीटर ऑफ मस्जिद नबवी जिस जोन को उन्होंने 24 आवर्स कर्फ्यू में कन्वर्ट किया हुआ। ठीक। लोकल अथॉरिटीज की ही इंस्ट्रक्शंस पे जगह पे तमाम फैसिलिटी को बंद की थी, बट here we have designated it as a focal point of community cooperation. वो हमने शेड्यूल भी कर दिया, तो इंशाल्लाह हम लिमिटेड लेवल पे उसको दोबारा जो है लोकल अथॉरिटीज की परमिशन लेकर उसको ऑपरेशन कर देंगे। Well, thank you. Not our decision. It was on the advice of the local authorities. Thank you for clarifying that. अच्छा हुआ आपने वजाहत कर दी, लेकिन अगर आप वहाँ एक टोकन रिप्रेजेंटेशन ही सही अगर हो जाए ताकि एक हाँ अगर वो हो जाए तो फिर लोगों की दिक्कत दूर हो जाएगी। ओके, एक्सीलेंट, वेरी गुड, थैंक यू। Thank you, sir. I now request Akil Araisa to speak. जी मैं पहले तारुफ करवाऊंगा, अपना अकील अलाइन मेरा नाम है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सऊदी अरेबिया चैप्टर का मैं प्रेसिडेंट हूँ, जद्दा से बोल रहा हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ पीडीआई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सऊदी अरेबिया चैप्टर की और जद्दा सिटी बॉडी जो है उसके अहदेदारान मेरे साथ मौजूद हैं। मेरे साथ इधर जनरल सेक्रेटरी साहब हैं, फाइनेंस सेक्रेटरी साहब हैं, ख्वाजा हमाद साहब और इस्माइल रजा साहब, और उसके साथ जद्दा बॉडी के मेरे साथ हैं जनाब सीनियर नायब सदर तारिक नदीम साहब और उसके साथ फाइनेंस सेक्रेटरी जनाब शुएब अल्ताफ साहब। ये हम पूरी टीम स्पेशली एंगेज हुए हैं। कुछ मैटर्स ऐसे हैं जो आपसे बयान करना चाहते थे कम्युनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू। जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है और यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ही नुमाइंदगी कर रहे हैं पाकिस्तानी कम्युनिटी में, तो इसलिए ज्यादातर सवालात हमें इस बारे में जरूर आते हैं कम्युनिटी के मसाइल के हवाले से। हजारों के हिसाब से कॉल्स आती हैं, उसी तरह जिस तरह वेलफेयर अताशी हैं पाकिस्तान एम्बेसी और कॉन्सुलेट उनको आती हैं, तो लोगों की तवक्कुआत पड़ी हुई हैं, इसीलिए आपसे सवाल कर रहे हैं कि ताकि अल्लाह पाक खैरियत करे और कम्युनिटी के मसाइल को हल कर पाए। इसमें जो सबसे पहला पॉइंट है वो मैं ये जो फ्लाइट के हवाले से कहना चाहता था कि वो पॉइंट बहुत सारे दोस्तों ने रेज कर दिया है, मैं उसी को पूरी पे इत्तेफाक करूंगा कि बहरहाल 8 से 10 लाख यहाँ पे ट्रैवलर हैं, 2 फ्लाइट कुछ भी नहीं है। और आपने जैसे वजाहत की कि वहाँ पे जो इंतजामात हैं उनका मामला है, तो मेरी दरख्वास्त होगी कि उन इंतजामात पे खुसूसी तवज्जो दें और जितना जल्द हो सके इस फ्लाइट ऑपरेशन को इंक्रीज किया जा सके। इसको डेली अगर 2 से 3 फ्लाइट्स भी हो तो ये काफी नहीं होगी इन हालात में, तो इन इंतजामात को अगर जितना जल्द हो सके वो आप जरूर करें। दूसरा इशू हरूप के इशू पे कुछ दोस्तों ने बात की और शबीर अख्तर साहब ने भी जो हमारे सदर हैं पीटीआई रियाज किचन के उन्होंने भी ये बात की थी। ये बड़ा ही सीरियस इशू है। मैं सच्ची बड़ी फ्रैंकली एक बात करूंगा कि हम ओवरसीज यहाँ पे 20 लाख से ऊपर ओवरसीज हैं पाकिस्तान में। इस ओवरसीज कम्युनिटी ने पाकिस्तान को बहुत कुछ दिया है, इस ओवरसीज कम्युनिटी ने बड़ी कुर्बानियां दी हैं। यहाँ कोई सैलाब आता है तो ओवरसीज, यहाँ पे कोई मसाइल आते हैं तो ओवरसीज, यहाँ पे कोई क्राइसिस आते हैं तो ओवरसीज। आज ओवरसीज क्राइसिस में हैं, या हमारी गवर्नमेंट को समझना चाहिए कि हकीकतन ओवरसीज क्राइसिस में हैं। ओवरसीज पाकिस्तानी जो पाकिस्तानी सऊदी अरेबिया में 20-22 लाख पाकिस्तानी हैं। मैं इसके साथ एक और चीज मेंशन करूं, टोटल 4 वेलफेयर अताशी, 2 रियाज में और 2 जद्दा में, अभी सुना है कि 2 इंक्रीज हुए हैं। 20-22 लाख आबादी के लिए 4 वेलफेयर अताशी या 6 वेलफेयर अताशी, आप यकीन मानिए तो काज नहीं अटेंड कर सकते, मसाइल कैसे हल करेंगे? इनका कसूर नहीं है। बराए मेहरबानी वेलफेयर अताशी यहाँ पे तादाद बढ़ाएं। अगर 20 लाख आबादी है तो उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, एक वेलफेयर अताशी कितने लोगों को फैसिलिटेट करते हैं? 4 से 6 वेलफेयर अताशी तो सिर्फ आपको अपनी जेलों के मामला के लिए चाहिए।
जो हमारे पाकिस्तानी बड़े माइनर मसाइल की वजह से जेलों में बैठे हुए हैं, छोटे छोटे क्लेम है उनके, सजाएं पूरी कर चुकने के बावजूद, अपने जुर्माने अदा करने के बावजूद फंसे हुए हैं कि उनके कबीलों ने उन्हें वांटेड डिक्लेयर किया हुआ है। इट मींस कि उन्हें लीगल सपोर्ट चाहिए, लीगल हेल्प चाहिए, लीगल एड चाहिए, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट उनसे रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी आपको। हमारा पाकिस्तानी तबका सबसे ज्यादा इस मामले में फंसा हुआ है, और इन हालात में आप यकीन मानेंगे कि जो आपने आजाद वीजे की बात की, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने कि लोग आके अपने आप को रिस्क में डालते हैं, लेकिन कैसे आते हैं? ये हमारा 2 नंबर माफिया जो वहां पे रिक्रूट करता है, ये उनकी वजह से है। आपको मैं कैटेगोरिकली बताता हूँ कि आज इन हालात में या इस कोरोना वायरस के हालात से पहले भी, और अल्लाह करे हालात ठीक हुए उसके बाद भी, श्रीलंका जैसे मुल्क से बंदे और लेबर को यहाँ पे लाना इतना मुश्किल काम है कि जो सऊदी अरब उनको लाने के लिए उनको एम्बेसी के 8 चक्कर लगाने पड़ते हैं, तब जाके उधर से लेबर आती है, प्रॉपर एग्रीमेंट होती है। हमारा पाकिस्तानी जो लेबर आता है वो तो हवा में सब कुछ होता है और बंदा इधर पहुंच जाता है, और इधर आता है कबीलों को भी पता होता है कि इनके एग्रीमेंट सब फेक है, और उसके बाद उनको वो ब्लैकमेल करता है, उनके ऊपर कफालतें ठोकता है, और जब वो बंदा कफालतें नहीं देता कि काम नहीं लगवा पाता है, उसको वांटेड डिक्लेयर कर दिया जाता है, वो 3-3 साल इधर भुगतता रहता है। केस जब शुरू हो गया, ये मसाइल बड़े जेन्युइन मसाइल हैं, इसके लिए लीगल एड के लिए आपको प्रॉपर लॉयर चाहिए। तमाम जुबैर अलहासा 5 से 6 लाख पाकिस्तानी हैं उधर, और स्किल्ड वर्कर है, सब इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, मैं आपको क्या बताऊं कि कैसी कैसी एलीट क्लास पाकिस्तान में उधर है जो है। आप अपना अकील भाई, हमारा कॉन्सेप्ट या हमारा कोई ऐसा है ही नहीं कि जो उनको वेलफेयर कोई रियाज से 4-5 घंटे तमाम को लगते हैं। अकील पॉइंट आ गया, पॉइंट आपका आ गया, आपने पॉइंट जो रेज करना था वो बिल्कुल मैं समझ गया। अब आप उसको स्ट्रेस कर रहे हैं उस पर, तो पॉइंट आपका समझ आ गया कि वेलफेयर अटैचीज कम है, आबादी ज्यादा है और वो पूरी तरह अटेंड नहीं कर पाते, ये आपका पॉइंट है। आपका पॉइंट है कि लीगल एड की ज़रूरत है, आपका पॉइंट है कि माफियाज जो हैं वो लोगों के साथ 2 नंबरी करते हैं। बिल्कुल, हम तो पिछले 1.5 साल से माफिया से ही लड़ रहे हैं, और मेरा ख्याल है अगले जितना भी मुद्दत है, एक के बाद दूसरे माफिया से हमारे यहाँ पंजा आजमाई हुई रहेगी, बिकॉज आपका निज़ाम तबाह हो गया, पूरे मुल्क का निज़ाम बर्बाद हो गया था, और आपका जब निज़ाम बर्बाद होता है तो उसका इम्पैक्ट गवर्नेंस पे आता है, और गवर्नेंस की और एबिलिटी टू सर्विस पीपल और डिलीवरी जो है वो मुतासर होती है, जो आज पाकिस्तान में हमें दिखाई दे रही है। और उसको निज़ाम को करना है, वक्त लगेगा, इस्लाहात करनी है, हो रही है, टाइम लगेगा, रेजिस्टेंस बेपनाह मिल रही है, हर तरफ से मिल रही है, माफिया से भी मिल रही है और स्टेटस को से भी मिल रही है, लेकिन इंशाल्लाह इस पर हम आगे बढ़ेंगे, बिकॉज हम डिटर्मिन्ड हैं कि हमने स्टेटस को बरकरार नहीं रखना, हम स्टेटस को तोड़ने के लिए आए हैं, और हमने नया अंदाज, नई फिक्र मुतारिफ करवानी है। लेकिन मुझे आपकी तकरीर सुनकर बड़ा हौसला हुआ है कि जो पीटीआई बड़ा सादा मतलब है भोला भाला कारकुन था, अब माशाल्लाह पूरा सियासी हो गया। वेल डन। एक्चुअली अब्दुल कयूम खान साहब, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपना सवाल करें। कयूम खान साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। His Excellency Foreign Minister साहब, अस्सलाम वालेकुम, एम्बेसडर साहब और वेलफेयर की जो हमारे ऑफिसर हैं, मैं सबसे पहले आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। यकीन करें आज की जो कॉन्फ्रेंस है हमारी, उससे हमें और जो हमारे आसानी से बड़ा हौसला मिल रहा है, और I have no hesitation to say that we are on the way towards नया पाकिस्तान, अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह। सर मैं भाई मुख्तसर बात करूंगा क्योंकि सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट रेज हो चुके हैं, लेकिन एक तबका ऐसा है कि जब वो सोशल मीडिया पर इस तरह की खबरें देखता है, नजरें होती है टेलीविजन पर और सोशल मीडिया के ऊपर कि क्या हमारे बारे में भी कोई बात करेगा, तो सर ये वो लोग हैं जिनका जिक्र समहाउ हो चुका है, लेकिन उसकी मतलब क्लैरिफिकेशन सही तरीके से नहीं। ये मोस्टली टैक्सी ड्राइवर्स हैं
जो कि उनकी कंपनियों ने उनको वांटेड लिस्ट में डाला है, जिसको हम अरबी में मखलूक कहते हैं। इन लोगों का सिर्फ एक डिमांड है कि हमें किसी तरीके से पाकिस्तान भेजा जाए। मैं पिछले दिनों इनके पास गया था, तकरीबन 60-70 बंदे थे, उनके सैकड़ों में। उसमें से एक ने कहा कि मुझे 8 साल हो गए जब से मैं पाकिस्तान नहीं जा सका और मेरे पास अब दूसरा कोई रास्ता नहीं है कि मैं खुद के ऊपर तेल चमका के अपने आप को आग लगा दूं। तो मैंने उसको यही कहा था, थोड़ा सा सब्र कर ले, इंशाल्लाह हालात ठीक हो जाएंगे। और सर दूसरा जो मेरी एक रिक्वेस्ट है कि फॉर फ्यूचर जो भी लोग पाकिस्तान से आते हैं उनके लिए कोई मैकेनिज्म हो, एक हॉटलाइन हो फ्रॉम एम्बेसीज टू द एयरपोर्ट। और आज मुझे सर तबूक से एक मैसेज आया है कि वहाँ पे तकरीबन 100 या 150 पाकिस्तानीज है जिनको राशन का मसला है। तो सर वो मैं एक्सेलेंसी एम्बेसडर साहब मैं आपको आपके पर्सनल मैसेज पे भेज दूंगा। लेकिन रियाद में राशन के हवाले से सर मेरी एक रिक्वेस्ट है कि मैंने तकरीबन 50 से 55 लिस्ट भेजे हैं और इन लोगों को अशद जरूरत है राशन की। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अगर इस हवाले से एम्बेसी ऑफ पाकिस्तान की मदद से इन लोगों के लिए इमरजेंसी के तौर पे कुछ दिनों के लिए राशन का बंदोबस्त कर ले तो सर बड़ी मेहरबानी होगी। थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया अब्दुल कयूम साहब। हॉटलाइन का आपने जिक्र किया, नई चीज़ है, इसको देख लेते हैं इज इट प्रैक्टिकल या नहीं है। दूसरी बात, आपको ये जानकर खुशी होनी चाहिए कि आज जो टैक्सी ड्राइवर का आपने जिक्र किया, जो टैक्सी ड्राइवर है, जो रिक्शे वाला है, जो रेडी वाला है, जो दिहाड़ीदार तबका है, आज मैं कहता हूं कि खुशाइंद तब्दीली देखिए कि आज उन सब की आवाज़ इमरान खान और तहरीक इंसाफ उठा रही है। आज डिफेंस और क्लिफ्टन के तबके की आवाज़ और लोग उठा रहे हैं, और वो तबका जो पिसा हुआ तबका था, जो मार्जिनलाइज्ड सेक्टर्स हैं सोसाइटी के, आज उनकी वकालत जो है ये तहरीक इंसाफ कर रही है। तो ये मैं समझता हूँ कि एक नई डेवलपमेंट है और एक ग्रास रूट से उठी एक जमात है जो आ रही है। और उसका एक रिफ्लेक्शन मैं आपको बताऊं कि अभी कोरोना के चैलेंज में जब हमने कॉल दी और सब लोग सहमे हुए थे, सब लोग डरे हुए थे कि हालात क्या होते हैं, और ये चीज़ ऐसी है कि पता नहीं चलता, किसी वक्त कोई इससे मुतासर हो सकता है। हम अपने घर में बैठे मुतासर हो सकते हैं, कोई बाहर से आके हमें इन्फेक्ट कर सकता है, और हम अपने दफ्तर में मुतासर हो सकते हैं, कोई भी मुतासर हो सकता है। लेकिन इसमें जब हमने कॉल दी कि हमें एक वॉलंटियर फोर्स दरकार है, तो 10 लाख से ज़्यादा लोगों ने रिस्पॉन्ड किया है, 10 लाख से ज़्यादा। और अल्लाह के फजल करम से आज हमारे पास पूरे पाकिस्तान में 10 लाख से ज़्यादा लोग हैं, जिसमें डॉक्टर्स हैं, जिसमें इंजीनियर्स हैं, सोशल वर्कर्स हैं, ख़वातीन हैं, रिटायर्ड सरकारी मुलाजमीन हैं, स्कूल टीचर्स हैं, पार्टी एक्टिविस्ट हैं, जिन्होंने ऑफर किया है बग़ैर तनख्वाह के, बग़ैर मुआवजे के, वो आके कोरोना की इस चैलेंज में वो हमारा हाथ बटाना चाहते हैं, हुकूमत के साथ चलना चाहते हैं और इमरान खान की कॉल पर रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं। तो ये एक बड़ी हौसला अफजा चीज़ है, और हम उनको अब डिस्ट्रिक्ट वाइज, तहसीलों पे, यूनियन काउंसिल वाइज हम उसको अब उसकी हमने पूरा एक स्ट्रक्चर हम उसका बना रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर्स को हमने हिदायत भेज दी हैं, जो असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं उनको दे दी है। हम इनसे गैर सियासी नहीं, फलाही काम लेना है, लोगों की खिदमत खल्क का काम लेना है, और इनके पास ये हाथ बटाएंगे। एडमिनिस्ट्रेशन का ये मावन बनेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन जो ज़िले की सरबराही है वो डिप्टी कमिश्नर की होगी, जो तहसील की सरबराही है वो डिप्टी कमिश्नर की होगी, जो यूनियन काउंसिल का फोकल पर्सन है उस यूनियन काउंसिल का सेक्रेटरी होगा। ये लोग मावनीन होंगे, ये वो उनकी हेल्प करेंगे। वो जो एक ग्राउंड पे जो एक फोर्स चाहिए, जो महल्ले लेवल पे, गली लेवल पे लोगों को पहचानती है, बिरादरियों को, नामों को, कौन जागा है, कौन भूखा सोया है, कौन बेरोजगार है, तो उसमें वो मददगार साबित होगी। तो ये एक नया एक्सपेरिमेंट है जो पाकिस्तान में किया जा रहा है, और अगर
इसको अगर हमने सही ट्रेन कर दिया, उनके अंदर सही जज्बा पैदा हो गया, तो ये कैटलिस्ट फॉर चेंज, जो कहते हैं ना तब्दीली का रजाकार, ये बन जाएंगे रजाकार, और इंशाल्लाह माशरे में नई रिवायात को और अच्छी रिवायात को जन्म देने की हम कोशिश करेंगे। शुक्रिया। अब मैं अगर कोई किसी का इम्पोर्टेंट कोई क्वेश्चन है तो कर ले, क्योंकि मेरी अगली कमिटमेंट भी है, तो 4 से 6 का टाइम था, एंड हियर आई एम। माशाल्लाह 2 घंटे का हमारा इंटरेक्शन हो गया है। अगर कोई किसी का कोई ऐसा सवाल है जो पहले किसी दोस्त ने नहीं उठाया और वो कोशगुजार करना चाहता है, तो प्लीज डू दैट, नहीं तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। जी, मोहम्मद एजाज बात कर रहा हूँ यम्बो इंडस्ट्रियल एरिया से। हमारा कंसर्न ये कि रिसेंटली सऊदी लेबर मिनिस्टर ने अनाउंस किया है कि फ्यूचर में बड़े हार्ड डिसीजन हमें लेना होंगे। तो उस हार्ड डिसीजन की इम्प्लीमेंटेशन जो है वो डिपार्टमेंट में शुरू हो गई है, और उसमें हमने नोट किया अपनी कंपनी में कि इंडियंस का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है अपने बंदों को रिटेन करने के लिए पाकिस्तानी के मुकाबले में। उनकी जो इंडियन एम्बेसी है या जो उनके मिनिस्टर्स हैं, वो बहुत ज्यादा उस पर मिनिस्ट्रियों से इंटरफेयर कर रहे हैं। वहां से मेलें आ रही हैं कि इंडियंस को जो है ना रिटेन किया जाए और उनको ना निकाला जाए। मैं भी एम्बेसी से आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मिनिस्ट्री को डिप्यूट किया जाए कि पाकिस्तान किस तरह अपना इन्फ्लुएंस रखे ताकि इस मसले को हल किया जाए। तो पाकिस्तानी ना इक्वलेंट जो है ना बैलेंस होना चाहिए। दूसरा है कि क्रूड ऑयल आजकल बहुत सस्ता हो गया है। ये बड़ी एक सेकंड याज साहब, एक सेकंड, बहुत आपने बहुत कीमती बात कर दी, आप बहुत अच्छी बात कर दी है। एम्बेसडर साहब, मैं रिक्वेस्ट यू कि आप लेबर वालों से, मिनिस्ट्री से कांटेक्ट कीजिए, और ये जो इनका खदशा है कि पाकिस्तानी निशाना बन जाएंगे, हाँ अगर दिक्कत आती है और ले ऑफ्स होते हैं, तो फिर जो पॉपुलेशन है, जो प्रेजेंस है, तो प्रोपोर्शनल तरीके से हो ना, किसी एक मुल्क को या एक तबके को निशाना ना बनाया जाए। तो इस पे अगर आप इंगेज कर सकते हैं ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको हेल्प चाहिए, इफ़ यू फील एट द पॉलिटिकल लेवल हम आपकी मदद करें, तो प्लीज़ बताइएगा। मिनिस्टर से बात करनी है, फॉरेन मिनिस्टर से बात करनी है, लेबर मिनिस्टर से बात करनी है, तो आई विल बी मोर देन हैप्पी टू engage with them, you know, just to strengthen your arguments over there. I will do that. तो ये एक अच्छी बात इन्होंने की है। जी, अगली बात कीजिएगा एजाज साहब। क्रूड ऑयल जो है अभी बहुत सस्ता है, तो पाकिस्तान को चाहिए कि उसका जखीरा अंदरूनी बढ़ाए इसकी, और रिजर्वायर बिल्ड करे और उसको परचेज करके रखे ताकि फ्यूचर में उसके काम आ सके सस्ता तेल। ये बिल्कुल आपने सही कहा है। क्रूड इतना सस्ता कभी नहीं हुआ। बहुत अरसे के बाद कीमतें इतनी हद तक गिरी हैं और उसका फ़ायदा लोगों को पहुंचा है। आपने देखा होगा कि हुकूमत पाकिस्तान ने पिछले दिनों में कीमतें कम की हैं, और पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ऑयल, ये सब चीज़ों की हमने, इन सब पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की कीमतें कम की हैं। उसका इम्पैक्ट मैं समझता हूँ कि महंगाई पे पड़ेगा। महंगाई यकीनन कम होगी, अफरात ज़र में कमी आएगी, और वो लोगों को फ़ायदा, डायरेक्ट रिलीफ उसका लोगों को मिलेगा। अब क्रूड के लिए बिल्कुल हम इससे गाफिल नहीं हैं कि फॉरवर्ड बाइंग की जा सकती है। प्रॉब्लम हमारा ये है, हमारे पास स्टोरेज नहीं है। हमारे पास जो इस वक्त, देखिए बदकिस्मती से एक जहां जाते हैं, एक नहीं, जिस चीज को हाथ लगाते हैं, एक नया चैलेंज वहां से निकलता है। अब एक अपॉर्चुनिटी है, अगर हमारे पास स्टोरेज होती हम उसको लेके स्टोर कर सकते। स्टोरेज कैपेसिटी नहीं है हमारे पास। अच्छा, तो हम अगर लेना भी चाहें तो कहाँ रखें? तो ये एक प्रॉब्लम है। हम कोशिश कर रहे हैं कि हमें स्टोरेज कैपेसिटी को जितना इमरजेंसी बेसिस पे उसको बढ़ाया जाए, ताकि हम इससे फायदा उठा सकें। हमारा इंपोर्ट बिल का बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो ऑयल की इंपोर्ट्स पर है, और अगर वो सस्ती हो जाती है तो ऑब्वियसली हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सस्ती होगी, और हमारी गुड्स जो हैं, हमारी एक्सपोर्ट गुड्स जो हैं, वो उतनी कंपेटिटिव हो जाएंगी। तो यस, पॉइंट अंडरस्टूड। तो मैं इसके साथ एम्बेसडर साहब, आपका और जितने पार्टिसिपेंट्स हैं सऊदी अरेबिया के मुख्तलिफ शहरों से,
जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, उन सब 55 ख़वातीन और हज़रात का अपने दिल की अता गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आपने अपना वक्त दिया, मैं बहुत मशकूर हूँ और आपकी बहुत सी बातों से मैं मुस्तफ़ीद हुआ हूँ। इंशाअल्लाह ये हमने एक आगाज़ किया है, ये इब्तिदा है और इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे कि गाहे बगाहे हमारा इंटरेक्शन रहे और डायरेक्ट फीडबैक जो है वो मुझे मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच एम्बेसडर साहब, वेरी काइंड ऑफ यू, थैंक यू। Sir, we are honored, sir. Thank you.